शुरू कर देता हूं भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल। Very good evening. I welcome all of you on behalf of Pusa Road CP Study Circle on today's webinar on very hot topic, that is issues in annual filing, KYC and DIR3. And as discussed, there are a lot of queries about the portal and forms. We will discuss each and everything. And on this subject, our very learned friend CS Divesh Goyalji with us. I welcome you, sir. I also welcome Rajiv Polisa and all the attendees on behalf of our study circle. To introduce him very briefly, but there is no need because everybody knows him and is a very familiar to our study circle. But it is my duty to introduce him very briefly. He is a fellow member of Institute of Company Secretary of India, having intense expertise in corporate law for the last 9 years. He is a young and progressive practicing company secretary with zeal to dig deep into the nuisance of corporate laws. Being a researcher at heart, he has done meticulous research and has penned various articles on the Companies Act 2013 to keep at pace with the latest changes and critically dissect the implication of various provisions of the new act. He has co-authored the company law premier book published by the ICSI. He has also added a lot to the issuance of various guidance notes by ICSI. He was a member of the Task Force Committee and Research Committee for the last 3 years. He is a member of various committee of the NIRC of ICSI. His articles have been published in ICSI magazine and are available on various popular websites relating to corporate law. He has deliberated at several forums on corporate law throughout the country. Over the last 2 years, he has deliberated more than 200 seminars and penned approximately 800 articles on multiple topics of corporate law. This is a brief introduction to our today's speaker. Once again, I welcome you, sir, and over to you, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. First of all, thank you so much, Rajesh, again giving me an opportunity to interact with the member of the study circle. As definitely since last 4 or 5 years, I'm continuously associated with this study circle, and no doubt we are getting a very good response every time. So that's why, because जब भी हम attend करते चाहे physical होते थे या webinars हो रहे हैं, every time we are seeing कि great gathering are there. जो एज अ स्पीकर प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि स्पीकर को जो चीज अट्रैक्ट करती है कि हाँ गैदरिंग होती है, इंटरेक्शन होता है, तो दैट थिंग अट्रैक्ट्स द स्पीकर. आज भी हम देखते हैं ऑलमोस्ट 150% है ज्वाइन दिस वेबिनार, तो दैट्स रियली ग्रेट सर. ये सब आपके एफर्ट्स है जिसके कारण लगातार मेंबर्स ज्वाइन भी करते हैं आप लोगों के, एंड दे आर गेटिंग द नॉलेज. एंड नॉट ओनली दिस, कंपनी लो मैं काफी बार और भी आपके मैसेजेस देखता हूँ, यू आर डूइंग द सेमिनार्स ऑन द रेगुलर बेसिस वेबिनार्स. Sir. That's a great thing, sir. And thank you so much for this invitation. So ऐसा है कि राजेश जी ने बोला, mostly I know all the members know me in this study circle because on the regular basis we are discussing on the different amendment under Companies Act. और Companies Act के amendment की अगर हम बात करते हैं तो 2014 से जब से एक्ट आया है, इवन अभी तक कोई सिंगल मंथ भी ऐसा नहीं गया होगा कि Companies Act में कोई amendment नहीं आया. Because regular base पे हम देख रहे हैं कि Companies Act में कोई ना कोई amendments तो regular आते रहते हैं. अभी स्टार्ट करने से पहले भी कोहली साहब कुछ अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे थे, तो अभी उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये अमेंडमेंट जो रेगुलर बेस पे आते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इनका इम्पैक्ट कहाँ पे हमारे ऊपर आता है. बिकॉज एवरी अमेंडमेंट हैविंग एन इम्पैक्ट, कहीं ना कहीं हर अमेंडमेंट का इम्पैक्ट आता है, चाहे वो हम एनुअल फाइलिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं, चाहे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं. और इस साल की अगर हम बात करते हैं तो दिस ईयर तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख ही रहे हैं कि सो मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर. Means since last 1 month I can say कि मैं शेड्यूल 3 और बैलेंस शीट पे ऑलमोस्ट 50-60 प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या अमेंडमेंट आ रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ अमेंडमेंट आर देयर. इवन स्टिल मैनी बैलेंस शीट आई एम सीइंग वाचिंग एंड वेटिंग कि बहुत सारी बैलेंस शीट में अभी भी अमेंडमेंट प्रॉपर्ली कवर नहीं हो रहे हैं. तो इतने सारे जब गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है तो सबसे पहले एज अ प्रोफेशनल हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन अमेंडमेंट्स के बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए. देन उनकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है, दैट शुड बी प्रॉपर्ली we can say कि properly check कि हाँ properly noting हो रही है नहीं हो रही है. So I will give in this webinar today I will give a brief also कि क्या-क्या amendments हैं. I just want to give brief because बहुत सारी बैलेंस शीट में मैंने देखा कि कुछ clauses missing थे, so that should not be there. Because आज के डेट में क्या है कि Ministry of Corporate Affairs की बात करें, ROC की बात करें, they are very strict about the compliances.
अभी रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट वीक आई हैव सीन वन पेनल्टी ऑर्डर ऑफ द आरओसी. They have imposed the penalty on company amount to 6 lakh just because company have not mentioned the DIN number on the financial statement. So वैसे देखा जाए एक बहुत छोटी सी चीज है, जब हम एनालाइज करते हैं कि इतनी बड़ी बैलेंस शीट में एक छोटी सी चीज हमने नहीं लिखी, बट एवरी स्मॉल थिंग हैविंग इट्स इम्पैक्ट. और जब तक गवर्नमेंट पेनल्टीज नहीं लगाती थी, गवर्नमेंट नोटिस नहीं इशू करती थी, एवरीथिंग वाज करेक्ट. बट जब से अब गवर्नमेंट ने पेनल्टीज लगाना, नोटिस इशू करना शुरू कर दिया है, then we should be very careful. So जो इतने सारे अमेंडमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो गए हैं, या हम बोल सकते हैं इतने सारे अमेंडमेंट जो कॉर्पोरेट लॉ में हो गए हैं, वो सब चीजें हमें प्रॉपर्ली कवर करनी है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, चाहे डायरेक्टर रिपोर्ट हो, चाहे ऑडिटर रिपोर्ट हो. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू डिस्कस दैट बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ऑलरेडी टैक्स ऑडिट्स खत्म हो गई है. नाउ एवरीवन विल बी बिजी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइलिंग्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑल दिस थिंग विल बी फाइनलाइज्ड. So this time राजेश जी आपने बहुत सही टॉपिक रखा है, so that everyone जो भी फाइनलाइज करेगा, तो that person should not miss anything, because this year ऑडिटर रिपोर्ट के भी कुछ क्लोजेस में अमेंडमेंट है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी कुछ क्लोजेस में अमेंडमेंट है, इवन शेड्यूल 3 में भी दिस ईयर देयर आर द अमेंडमेंट. तो एनुअल फाइलिंग में देयर आर द लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन चेंज. स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में भी रिसेंटली चेंज आ गया है. सीएसआर के प्रोविजंस की मैं बात करता हूं तो सीएसआर में भी चेंज आ गया है. So small changes are, but these small changes everywhere having the impact on our annual filings also. So today we will discuss all such things, and the main motto of today's webinar, for which I am here according to me, to discuss the criticalities in annual filing also. So the one request from everyone कि किसी की कोई भी query हो, please feel free to ask your query in the chat box, in the question answer during the session only, because we will discuss the simultaneously so that everything should be clear. बिकॉज राजेश जी जब भी बुलाते हैं मैं बस एक ही चीज बोलता हूँ कि आज जब आए हैं तो जितने मेंबर अटेंड करते हैं उनकी सबकी क्वेरीज रिजॉल्व होनी चाहिए. देन वी कैन से आवर वेबिनार और आवर सेमिनार इज सक्सेसफुल. सो व्हाटएवर क्वेरीज एनीवन हैव, प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेरीज, बिकॉज आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना मैं क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाऊंगा यहाँ पे. सो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, एनुअल फाइलिंग, DIR3 KYC. सो एनुअल फाइलिंग पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं DIR3 KYC की. DIR3 KYC we know कि 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक नया फॉर्म लेके आए थे, नया कंप्लायंस स्टार्ट किया था कि एवरी ईयर डायरेक्टर्स को DIR3 KYC फाइल करना पड़ता है. अब DIR3 KYC में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार मेरे पास आता है, डेफिनेटली यू मस्ट बी अवेयर द आंसर, कि क्या सभी को करना मैंडेटरी है, या जो पर्सन कहीं भी डायरेक्टर नहीं है, कि आज की डेट में दिन कहीं भी यूज ही नहीं हो रहा, क्या उस पर्सन को भी DIR3 KYC फाइल करना मैंडेटरी है? सो एज पर द लॉ डजंट मैटर कि आप कहीं डायरेक्टर हैं या आप कहीं डायरेक्टर नहीं है, अगर आपके पास DIN नंबर है तो आपको KYC तो फाइल करना ही पड़ेगा. और DIR3 KYC के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी नॉर्मल फीस इज ₹0 है, बट जैसे ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो तो डायरेक्ट इट इज 5000. सो द लेवल ऑफ पेनल्टी, लेवल ऑफ फीस जो मिनिस्ट्री ने इंक्रीज किया है, उसका कहीं ना कहीं एक रीजन है गवर्नेंस एस्टैब्लिश करना, कॉर्पोरेट कंप्लायंस एस्टैब्लिश करना. बिकॉज जनरली क्या है कि इंडिया में हम एक टर्म यूज करते हैं कि डंडे से जब तक डंडा नहीं पड़ता है बात नहीं मानते हैं, तो वो डंडा यहाँ पेनल्टीज के, हम बोल सकते हैं कि पेनल्टीज के रूप में यहाँ पे पड़ता है. तो पेनल्टीज और फीसेस काफी है. तो DIR3 KYC की जनरली हमारी ड्यू डेट होती है 30 सितंबर, बट दिस ईयर सितंबर मंथ से अगस्त मंथ में मिनिस्ट्री ने एक नया अमेंडमेंट किया 1 सितंबर से प्रैक्टिकली, कि कंपनी एक्ट के कुछ फॉर्म MCA V2 पोर्टल से MCA V3 पोर्टल पे शिफ्ट कर दिए. अब जो कंपनीज एक्ट के अभी तक तो क्या था कि सिर्फ LLP के फॉर्म V3 पोर्टल पे थे, बट 1 सितंबर से 9 फॉर्म ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज बीन शिफ्टेड टू द V3 पोर्टल ऑन द MCA. और V3 पोर्टल पे आई नो सभी के बहुत क्वेरीज होगी. प्रैक्टिकली टेक्निकल क्वेरीज का हम कुछ नहीं कर सकते कि जो साइट से रिलेटेड है, बिकॉज वो सिर्फ मिनिस्ट्री ही रिजॉल्व कर सकती है. हाँ, बट एक सजेशन मैं दे सकता हूँ कि जो हम भी यूज करते हैं एज अ प्रोफेशनल, एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, कि कोई भी क्वेरी है तो उसको टिकट जरूर रेज करो. अगर टिकट नहीं रेज करते तो वी कैन नॉट क्लेम कि क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो रही है या ये क्वेरी हमने रेज की थी और इस पे कुछ हुआ नहीं, तो टिकट जरूर रेज करो. सेकंड थिंग, इट मेंशन ऑन द मिनिस्ट्री वेबसाइट इटसेल्फ कि टिकट रेज करके आप अपना कंसर्न जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट या रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मिनिस्ट्री को मेल भी करो, so that they can consider work on that and they can resolve the tickets. अब definitely अब कोई बोलेगा सर कितनी क्वेरी रिजॉल्व होती है कितनी नहीं होती है, that is a separate thing, but we have to process from our side, we don't have any other option except that.
सो जो भी क्वेरीज है, टेक्निकल क्वेरीज का सोल्यूशन किसी के पास नहीं। आज आप मेरे पास आओ, राजेश जी से पूछो, किसी से पूछो, नो वन कैन रिजॉल्व, बिकॉज जो टेक्निकल साइड इशू है, नो वन कैन रिजॉल्व दैट। हाँ, कोई प्रोफेशनल या इंटरप्रिटेशनल इशू है, लीगल इशू है, डेफिनेटली वी कैन वर्क ऑन दैट, बट वी कैन नॉट सॉल्व एनी टेक्निकल इशू। तो किसी के अदर देन टेक्निकल इशूज भी है एमसीक्यू वेबसाइट के, दैट आल्सो वी कैन डिस्कस हियर इन दिस। सो अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक में लेके चल रहा था, डीआईआर3 केवाईसी। अब डीआईआर3 केवाईसी V2 पोर्टल से कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है V3 पोर्टल के। अब V3 पोर्टल पे क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आज तक जो आपकी एमसीए पे आईडी क्रिएटेड थी, जो हम आज तक यूज करते हैं हमें एमसीए पे फॉर्म फाइल करने के लिए, वो सेम आईडी V3 पोर्टल पे आपकी वर्क नहीं करेगी। आपको उस आईडी को V3 पोर्टल पे अपग्रेड करना पड़ेगा, या एक सेपरेट न्यू ईमेल आईडी, न्यू फोन नंबर, सब कुछ पैन नंबर से एक नई आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। जस्ट मेरे पास एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ V3 पोर्टल से रिगार्डिंग ही है। सो हमसे V3 पोर्टल की अगर मैं बात करता हूँ, तो V3 पोर्टल पे छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है जस्ट फॉर द ब्रीफ कि V3 पोर्टल पे क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है, और दैट शुड बी, आई थिंक कि एवरीवन शुड बी अवेयर अबाउट दोस थिंग्स। सो जब हम एमसीए V3 पोर्टल की बात करते हैं, तो मिनिस्ट्री ने V2 से V3 में इंटीग्रेट किया है। पहले जो भी पोर्टल आज तक आप यूज करते आए हो एमसीए की साइट पे, दैट वाज द V2 पोर्टल। नाउ दिस इज अ न्यू V3 पोर्टल ऑफ द एमसीए वेबसाइट। तो V3 पोर्टल पे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, द पर्पस ऑफ दैट, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, इट विल वर्क मच वी कैन से स्पीडर देन द V2 पोर्टल। आज की डेट में डेफिनेटली ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है, बट दिस इज द फ्यूचर प्रोजेक्ट ऑफ दैम। अब हम बात करते हैं किस फेज में ये V3 पोर्टल लॉन्च हुआ है। अगर फेज की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट टाइम 24 मई 2021 को मिनिस्ट्री ने V3 पोर्टल लॉन्च किया। उस टाइम V3 पोर्टल पे कोई फॉर्म तो नहीं लॉन्च किया, बट V3 पोर्टल पे मिनिस्ट्री ने उस टाइम साइट को रीमैप कर दिया, ई बुक का कंसेप्ट चेंज कर दिया, ई बुक को बहुत डिफरेंट बना दिया, ई कंसल्टेशन मॉड्यूल लेके आए। देन फर्स्ट टाइम ऑन द 8th March 2022, ministry what they have done, they have shifted all the forms of the LLPs from the V3 portal to the V3 portal. So 8th March से हम बोल सकते हैं इफेक्टिवली ये एमसीए के V3 पोर्टल ने वर्क करना शुरू किया और सारे फॉर्म्स वहां से शिफ्ट हो गए। देन ऑन द 1st September 2022, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए सीक्वेंस वाइज चला कि थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता चले। 1st September 2022 से 9 फॉर्म ऐसे हैं कंपनीज एक्ट के जो मिनिस्ट्री ने शिफ्ट कर दिए हैं LLP एक्ट V3 पोर्टल पे। तो अब ये 9 फॉर्म V2 पोर्टल से शिफ्ट होकर V3 पे आ गया। 9 फॉर्म में आप देख सकते हो देयर इज अ फॉर्म DIR3 KYC। तो जिसने भी 1 सितंबर से पहले KYC किया उसने तो V2 पोर्टल पे किया, बट 1 सितंबर के बाद जो भी KYC करेगा उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको V3 पोर्टल पे ही करना पड़ेगा। अब इसमें काफी लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर V2 पोर्टल पे हमने कर दिया तो हम V3 पोर्टल पे इसे चेक कैसे कर सकते हैं कि KYC हो गया या नहीं हो गया। बिकॉज बहुत बार होता है कि क्लाइंट एक डायरेक्टर 2-3 कंपनीज में है, डिफरेंट प्रोफेशनल गैस कंपनीज, अब हमें नहीं पता केवाईसी हो गया या नहीं होगा, तो हम कैसे चेक करें। तो प्रैक्टिकली चेक करने के लिए आपको वही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा जो प्रोसेस आप आज की डेट में केवाईसी फाइल करने के लिए करोगे। बिकॉज सेम प्रोसेस आप यूज करोगे, लाइक एमसी की V3 पोर्टल पे जाओगे, वहां केवाईसी फॉर्म फिल करोगे, डायरेक्टर से ओटीपी लोगे, जब फाइनल सबमिट करोगे देन इट विल शो कि अगर आपने ऑलरेडी फाइल कर दिया है इट विल गिव एन एरर, अगर ऑलरेडी फाइल नहीं हुआ है तो वो आपका पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज अ प्रोफेशनल दिस इज अ लेंथी प्रोसेस, बिकॉज एक चेक करना कि फाइल हुआ है या नहीं हुआ उसके लिए हमें इतनी लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो DIR3 केवाईसी की ड्यू डेट जैसे मैंने बोला 30 सितंबर होती है, बट दिस ईयर मिनिस्ट्री ने ये केवाईसी की डेट एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर कर दी है। सो टुडे इज द 11th अक्टूबर। अगर किसी की केवाईसी अभी तक नहीं हुई है तो यू आर हैविंग द 4 मोर डेज, केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज लास्ट डेट का हमें भी पता है, कोई भी वेबसाइट हो लास्ट डेट पे क्या सीन होता है, तो अभी डोंट वेट फॉर द 13-14, आज कल में इसको कंप्लीट कर लीजिए, बिकॉज आफ्टर 15 डायरेक्ट एडिशनल फीस 5000 लगेगी और 15 तक फीस लगेगी 0 रुपीज। सो दिस इज द अबाउट द DIR3 KYC।
अब थोड़ा सा बस मैं स्पीडली 10 मिनट लेके एमसीए V3 के बारे में बता देता हूँ, देन हम मैनुअल फाइलिंग पर मूव ऑन करते हैं। आज के दिन अगर हम V3 की बात करते हैं तो क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। नंबर 1, आज के दिन अगर आपको एमसीए की साइट पर नई आईडी बनानी है तो आप V2 पोर्टल पे तो आईडी बना ही नहीं सकते हो। आपकी नई आईडी अगर आज के दिन बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ V3 पोर्टल पे ही बन सकती है, चाहे आपको कोई ऐसा फॉर्म फाइल करना हो जो V3 पोर्टल से रिलेटेड नहीं है, स्टिल आईडी क्रिएशन तो V3 पोर्टल पर ही होगा। आज की डेट में डीएससी रजिस्टर करने हैं किसी ऐसे फॉर्म के लिए जो V3 पोर्टल पे अपलोड करना है, तो डीएससी भी V3 पोर्टल पर जाकर ही रजिस्टर करने पड़ेंगे। टुडेस एलएलपी का कोई भी फॉर्म फाइल करना है, एनी सिंगल फॉर्म ऑफ द एलएलपी, तो एलएलपी के फॉर्म कंप्लीटली शिफ्ट हो गए हैं V3 पोर्टल से V3 पोर्टल पर ही, और कंपनीज एक्ट के 9 फॉर्म आज की डेट में V3 पोर्टल पे है। तो ये जो 4 टाइप ऑफ सर्विसेज मैंने लिखी, ये चारों सर्विसेज आज की डेट में V3 पोर्टल पे अवेलेबल है। अब आता है V3 पोर्टल पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का और कंपनी सेक्रेटरीज का मेरे पास क्वेश्चन आया अबाउट द रजिस्टर्ड यूजर और बिजनेस यूजर, कि अगर हम V3 पोर्टल पे आईडी क्रिएट भी करते हैं, एज अ रजिस्टर्ड यूजर करते हैं तो क्या सर्विसेज, क्या बेनिफिट्स है, बिजनेस यूजर करते हैं तो क्या सर्विसेज है। तो अगर बिजनेस यूजर के रजिस्टर्ड यूजर के केस में तो क्या है कि ओनली ए इंडिविजुअल ही रजिस्टर्ड यूजर में क्रिएट कर सकता है आईडी, कोई भी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड यूजर आईडी क्रिएट नहीं कर सकती। बट जब हम बात करते हैं बिजनेस यूजर की, तो कंपनी की, एलएलपी की आप आईडी क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टर्स की आईडी क्रिएट कर सकते हो, या एमडी, सेक्रेटरी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, या प्रोफेशनल्स लाइक सीए, सीएस, हम लोग अपनी आईडी भी एज अ बिजनेस यूजर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अब ये आता है कि अगर मैं चलो रजिस्टर्ड यूजर ही हूं, मैं बिजनेस यूजर नहीं होता, तो मैं क्या क्या सर्विसेज अवेल कर सकता हूं V3 पोर्टल पर। तो आप ई बुक जनरली यूज कर सकते हो, मास्टर डाटा, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट देख सकते हो, कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने एज अ रजिस्टर्ड यूजर अगर अपनी आईडी क्रिएट की है, मैं बिजनेस यूजर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल रजिस्टर्ड यूजर, तो आप एलएलपी के रन फॉर्म और फिलिप फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म एमसीए पे फाइल नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली एज अ प्रोफेशनल बोलूं तो प्रोफेशनल के लिए तो रजिस्टर्ड यूजर कोई बेनिफिशियल ही, कोई यूजफुल ही नहीं है, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल हमें लॉट ऑफ टाइप ऑफ फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं जो इस रजिस्टर्ड यूजर से नहीं हो सकते। तो रजिस्टर्ड यूजर में या तो रन फॉर्म फाइल हो सकता है, या फिलिप फॉर्म, या केवाईसी। केवाईसी भी कौन सा, जहां पे आपको फॉर्म बनाना है, वेब वाला नहीं। तो दीज आर द ओनली 3 सर्विसेज अवेलेबल ऑन द रजिस्टर्ड यूजर। और बिजनेस यूजर की अगर मैं बात करता हूं, अब बिजनेस यूजर में बहुत तरह की चीजें हैं जो थोड़ा सा मैं बस ब्रीफ में ले रहा हूं। कंपनी के केस में अगर आपने एमसीए की आईडी क्रिएट की है, कंपनी की बिजनेस यूजर V3 पे आईडी क्रिएट की है, उस केस में उस आईडी से आप कंपनी का कोई भी फॉर्म फाइल कर सकते हो। वैसे ही सेम विद द एलएलपी। और अगर आपने किसी डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर की आईडी क्रिएट की है, तो वो इंडिविजुअल पर्सन जहां जहां डायरेक्टर होगा उन सभी कंपनीज के फॉर्म आप फाइल कर सकते हो। सेम विद मैनेजर, सेक्रेटरी एंड ऑल। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे, प्रोफेशनल यूजर। अब एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में बात करूंगा, तो हम तो बात करेंगे आईडी क्रिएशन एज अ प्रोफेशनल, कि एज अ प्रोफेशनल हम कैसे आईडी क्रिएट कर सकते हैं। एज अ प्रोफेशनल आईडी क्रिएट करने में बहुत सारे बेनिफिट है, कि जब हम एज अ प्रोफेशनल आईडी क्रिएट करेंगे ना, तो एज अ प्रोफेशनल आईडी क्रिएट जो कर रहे हो आप बिजनेस यूजर, आप किसी भी टाइप का फॉर्म फाइल कर सकते हो, कितनी भी कंपनी का कर सकते हो, कितनी भी एलएलपी का कर सकते हो। तो एक प्रोफेशनल यूजर आईडी आप बोल सकते हो इज द सुपीरियर अबव ऑल द आईडी। सो प्रोफेशनल यूजर आईडी जो हम लोगों को क्रिएट करनी चाहिए। फिर आते हैं रजिस्टर्ड यूजर कैसे क्रिएट करना है। रजिस्टर्ड यूजर बेटर है कि मैं बिजनेस यूजर ही क्रिएट करना बताऊं। मैंने एक छोटा सा प्रोसेस लिखा है कि सबसे पहले हमें एमसीए की साइट पे जाना है, राइट हैंड साइड पे क्लिक साइन इन या साइन अप का ऑप्शन होता है, वहां पे क्लिक रजिस्टर पे क्लिक करना, सिलेक्ट करना बिजनेस यूजर। अब बिजनेस यूजर सिलेक्ट करने के बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि एज अ प्रोफेशनल क्रिएट करनी है, एज अ मैनेजर, सेक्रेटरी कैसे क्रिएट करनी है, डायरेक्टर। तो आप जिस पे भी क्लिक करोगे कि एज अ प्रोफेशनल क्रिएट करना चाहता हूँ या एज अ किस कैपेसिटी में क्रिएट करना चाहते हो, तो जिस भी कैपेसिटी में आप क्रिएट करना चाहते हो उस पे आपको सिलेक्ट करना है और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी, तो मैं आज वही टॉपिक ज्यादा लेके चल रहा हूँ कि जो मोस्टली मेरे को भी लोगों से क्वेरीज मिल रही है, कि जिनका मतलब लोगों को भी आंसर चाहिए, कि V3 पोर्टल पे डीएससी कैसे रजिस्टर करने हैं। आज के दिन पे अगर V3 पोर्टल पे डीएससी रजिस्टर करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो आपको एमसी की साइट पे लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। बिना V3 पे लॉगिन क्रिएट करे आप डीएससी रजिस्टर नहीं कर सकते।
फिर आपको लॉगिन क्रिएट करने के बाद माई एप्लीकेशन ऑप्शन होगा बार में, वहां पे F4 सर्विसेज में एसोसिएट डीएसई होता है। जब एसोसिएट डीएसई पे आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल करवाएगा 2 सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में, उसके बाद आप अपना प्लग लगाइए और डीएसई रजिस्टर कर दीजिए। कौन कौन से फॉर्म आज के दिन V3 पे है इसका मैंने मेंशन यहाँ किया है। फॉर्म अपलोडेशन भी V3 पे ही होता है। तो ये जस्ट मैंने थोड़ी सी चीजें आप बोल सकते हो कि बेसिक जो हमारा V3 का रहता है व्हिच वी हैव डिस्कस। तो केवाईसी के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा कि V3 पे ही आईडी क्रिएट करके आपको V3 पे ही वर्क करना पड़ेगा। बट नो डाउट एमसीए V3 पे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, बहुत सारी क्वेरीज भी आती है। जैसा कि अभी सर से डिस्कशन हो रहा था बिफोर द सेशन कि आजकल एलएलपीज इनकॉर्पोरेशन के बाद सीओआई जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकली अपने जो भी आपका एसआरएन नंबर है, आपको पेन इशू हो गया है, 10 इशू हो गया बट सीओआई नहीं आया, तो पेन 10 मेंशन करके आप एमसी की साइट्स पे टिकट रेज करिए। प्रैक्टिकली आई हैव सीन कि ठीक है थोड़ा डिले आगे पीछे चलता है बट दे आर इशूइंग द रिजॉल्विंग द टिकट्स एंड इशूइंग द सीओआई। और सीओआई इसलिए भी तो इंपॉर्टेंट है, जब तक सीओआई नहीं आएगा बैंक अकाउंट नहीं फाइल ओपन कर सकते, फाइनली आगे के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज है उन्हें हमें फेस करना पड़ेगा। तो ये तो था डीआर3 केवाईसी के रिगार्डिंग। स्टिल अगर केवाईसी पे किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। जैसे किसी की क्वेरी है, कैन रजिस्टर्ड यूजर बी चेंज टू द बिजनेस यूजर? यस, रजिस्टर्ड यूजर को आप बिजनेस यूजर में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप रजिस्टर्ड यूजर अगर आपकी आईडी है उसको V3 पे लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद जो भी आपकी नाम होगा आईडी का ना, राइट साइड कॉर्नर पे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको ऑप्शन देगा अपडेट। वहां पे आप अपडेट पे जब क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन देगा कि बिजनेस यूजर में आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। बिकॉज ऐसा ही है ना, पहले तो सभी की पुरानी आईडी थी, हम सभी ने भी क्या किया, पुरानी आईडी थी तो वो तो रजिस्टर्ड यूजर थी, उनको कन्वर्ट करके किया है बिजनेस यूजर में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवाईसी से रिलेटेड। दिन वाज अलॉटेड इन 2009 इन द नेम ऑफ रानी गुप्ता। नो केवाईसी डन सो फार, नाउ द नेम इज रानी देवी। हाउ टू डू रानी गुप्ता बट नो आईडी प्रूफ फॉर ओल्ड नेम? सर आप इसका एक काम कर सकते हैं ना, जब अगर आपका नाम चेंज हो गया है तो आपको जो पहले एक बार केवाईसी करना है तो डीआर3 केवाईसी फॉर्म ही फाइल होगा आपके केस में, क्योंकि आपने कभी नहीं किया। तो जो आप फॉर्म फाइल करेंगे उसमें फॉर्म में आपको चेंज करने का ऑप्शन देगा कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो वहां पे आप नाम पे क्लिक करके नाम चेंज कर दो और फिर जो एक्चुअल है उनका वो अटैच करिए वहां पे। अब ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है, मैं नेक्स्ट आता हूँ। तो आई थिंक केवाईसी पे यही पॉइंट थे। स्टिल अगर किसी के भी कोई डाउट होते हैं तो आप लोग केवाईसी पे पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर दैट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे वन बाय वन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो आई विल ट्राई टू डू दिस कि हम 6:30 तक डिस्कशंस करते हैं, देन जैसे भी क्वेरीज होगी, बिकॉज एवरी टाइम हमने देखा है कि आफ्टर द सेशन सो मेनी क्वेरीज आर देयर, देन हम क्वेरीज को टेक अप कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की हमारी डेफिनेशन रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने अमेंड कर दी है। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूं ताकि हम डाटा से बात करते हैं। तो रिसेंटली हमारी जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है ना, वो चेंज हुई है, और वो चेंज हुई है 15 सितंबर 2022 से। तो 15 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया, और बाय दैट नोटिफिकेशन दे हैव अमेंडेड द डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल कंपनी। अब हम आ जाते हैं पहले थोड़ा सा नीचे कि स्मॉल कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 में। तो जो 1 अप्रैल 2014 को जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थी वो बोलती थी स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक हो और टर्नओवर 2 करोड़ तक हो। ये 1 अप्रैल 14 में कंसेप्ट आया था, और 1 अप्रैल बोल सकते हो 21 तक यही कंसेप्ट चल रहा था, ऑलमोस्ट 7 इयर्स। देन 1 अप्रैल 21 से मिनिस्ट्री ने नई एप्लीकेशन अमेंड की कि स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 2 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़ रुपीस। ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ कंपनीज, ऑलमोस्ट जैसे मैंने लिखा है कि ऑलमोस्ट 4 लाख कंपनीज नॉन स्मॉल से स्मॉल कंपनीज में फॉल कर गई, मतलब 20 करोड़ की टर्नओवर में भी। अब रिसेंटली जो 15 सितंबर 2022, अब जो 15 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन आया है उसमें मिनिस्ट्री ने मेंशन किया कि कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी
if the paid up share capital is not more than 4 crore and turnover is not more than 40 crores. दोनों कंडीशन फुलफिल होना मैंडेटरी है। अगर एक कंपनी को स्मॉल कंपनी बनना है तो उसकी पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ से या उससे नीचे होनी चाहिए और टर्नओवर भी 40 करोड़ या उससे नीचे होनी चाहिए। अगर एक भी क्राइटेरिया आप क्रॉस करते हो तो यू विल बी आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल कंपनी। और हमें पता है कि स्मॉल कंपनी बनने पे बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे स्मॉल कंपनीज पे कार्बो एप्लीकेबल नहीं होता, स्मॉल कंपनीज पे कैश फ्लो एप्लीकेबल नहीं होता, स्मॉल कंपनी को साल में सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी होती है, स्मॉल कंपनी के फॉर्म्स पे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं होते हैं, स्मॉल कंपनीज को पेनल्टी के केसेस में भी बेनिफिट मिलता है। तो 40 करोड़ होने के बाद बहुत सारी कंपनी स्मॉल कंपनीज में फॉल कर जाएगी। हुआ क्या, ये डेफिनेशन अमेंड हुई है 15 सितंबर 2022। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मेरे पास रेगुलर आ रहा है कि मेरे पास जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ज्ञान गुरुकुल, बहुत सारे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज आर अटैच्ड देयर। एक क्वेश्चन बहुत सारे प्रोफेशनल्स का आया है कि अगर कंपनी इस साल अपनी बैलेंस शीट 15 सितंबर या उसके बाद साइन करती है तो जो बैलेंस शीट पे जो स्मॉल कंपनी का इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट लेने हैं वो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेने हैं, ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट ओल्ड राजेश जी का व्यू है कि ओल्ड के अकॉर्डिंग ही लेना है। बाकी पार्टिसिपेंट्स के भी क्या व्यू है, यू शुड गिव योर व्यू इन द चैट बॉक्स में भी आप मेंशन कर सकते हो कि 15 सितंबर के बाद बैलेंस शीट साइन करते तो न्यू डेफिनेशन को अप्रोच लेके चले या ओल्ड, बिकॉज बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अगर न्यू को लेके चलेंगे तो मान लेते हैं ना कि 31 मार्च 22 को 30 करोड़ की टर्नओवर थी, तो वैसे देखा जाए ओल्ड डेफिनेशन में वो नॉन स्मॉल थी पर न्यू डेफिनेशन में वो स्मॉल में फॉल कर गई। तो स्मॉल में फॉल करते बहुत सारे इंपैक्ट आ जाते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे भी इंपैक्ट आ जाता है, कैश फ्लोस पे भी, कैरो में भी बहुत जगह इंपैक्ट आता है। तो व्हाट इज योर व्यू? राजेश जी ने तो बोला है कि हम उसे ओल्ड ही लेके ओल्ड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बट जनरली ये एक ऐसा पॉइंट है कि yesterday also I had seminar in the फरीदाबाद, तो ये क्वेश्चन काफी लोगों का था कि ओल्ड को ही हम क्यों कंसीडर करेंगे या न्यू को ही हम क्यों कंसीडर करेंगे। तो आई जस्ट गिव माय व्यू ऑन द सेम। पहली चीज डेफिनेशन ये आई है हमारी 15 सितंबर 2022 को और उसी दिन इंप्लीमेंट हो गई। फर्स्ट थिंग 15 सितंबर 2022 और उसके बाद आप कोई भी उस कंपनी का कंप्लायंस करोगे तो आप डेफिनेटली न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही करोगे। फॉर एन एग्जांपल 15 सितंबर के बाद आप कोई फॉर्म फाइल करते हो, कोई भी फॉर्म, आई एम नॉट सेइंग एनुअल फाइलिंग फॉर्म, कोई भी फॉर्म फाइल करते हो तो अगर न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी स्मॉल है ना तो वो उस पर सर्टिफिकेशन नहीं मांगेगा किसी प्रोफेशनल का, जो इमीडिएट इंपैक्ट आप चेक कर सकते हो। तो 15 सितंबर के बाद लाइक आप इस साल में आपको पता है 15 सितंबर को आपने देखा डेफिनेशन अमेंड हो गई है, तो अब साल में 2 ही मीटिंग अगर आप करते हो तो भी आपका प्रॉपर कंप्लायंस कंसीडर हो जाएगा सेक्शन 173 का। नहीं, लेकिन सर ये 15 सितंबर के बाद वाले महीने में 2 मीटिंग करने में नहीं लगेगा। ऐसा होता है कि जो स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट है वो बोलता है कि आपको एक कैलेंडर ईयर में 2 मीटिंग करनी है, तो अगर आप एक कर चुके हो तो अगर एक ही और करते हो तो आपका कंप्लायंस हाँ, यस जी सर तो पूरा माना जाएगा। और जैसे कि आज की डेट में मान लो आज 11 अक्टूबर है, मैं कोई DI-12 एग्जांपल के लिए फाइल करता हूँ और मेरी कंपनी अगर न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल बनती है तो उस पर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं मांगेगा। इवन ऑन द इंपॉर्टेंट चीज, इवन ऑन द AOC4 और MDT7, जब आप AOC4 इस साल फाइल करोगे ना 31 मार्च 22 के लिए, तो जो सर्टिफिकेशन वाला कॉलम होता है ना फॉर्म का, उस कॉलम के लिए न्यू डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी। कि मतलब एग्जांपल के लिए 31 मार्च 22 की आपकी 30 करोड़ की टर्नओवर थी, तो अब जब आप AOC4 फाइल करोगे, अगर आपने AOC4 में 30 करोड़ टर्नओवर मेंशन की तो वो आपको स्मॉल कंपनी ही कंसीडर करेगा, फॉर्म पे सर्टिफिकेशन नहीं मांगेगा AOC4 पे। सो फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्म्स फाइलिंग एंड अदर कंप्लायंसेस आपको न्यू डेफिनेशन 15 सितंबर से एप्लीकेबल हो गई है। जैसा कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, वी ऑल आर अवेयर कि स्मॉल कंपनीज के केस में हमें MDT7 फाइल करना होता है, नॉन स्मॉल कंपनीज के केस में MDT7 फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न का, और स्मॉल कंपनी के केस में MDT7A फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न का। अब इशू क्या आएगा, आज मान लो कि आपने 31 मार्च 22 की 30 करोड़ आपकी टर्नओवर थी, आपने AOC4 फाइल कर दिया। अब AOC4 फाइल करते ही वो 30 करोड़ की टर्नओवर मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में फीड हो गई है। अब वो 30 करोड़ को देखेंगे तो 30 करोड़ के अकॉर्डिंग तो हमारी कंपनी स्मॉल कंपनी है, तो उस केस में जब आप MDT7 फाइल करने जाओगे ना वो आपको एरर दे देगा कि आपकी कंपनी तो स्मॉल कंपनी है, आप MDT7A फाइल करो। सो ये साल हमें कंसीडर करके चलनी है
कि ट्राई करना AOC 4 के बाद ही MJT 7 फाइल करना, बिकॉज AOC 4 में जो आप कैपिटल और टर्नओवर्स मेंशन करोगे उसका इंपैक्ट आएगा कि आपको MJT 7 फाइल करना है या आपको MJT 7A फाइल करना है। सो दिस पॉइंट वी हैव टू बी कंसीडर। अब बात करते हैं बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैश फ्लो बनेगा या नहीं बनेगा, कारों की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी 31 मार्च 21 के केस में, 31 मार्च 22 के केस में। तो बैलेंस शीट से रिगार्डिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग या डायरेक्टर रिपोर्ट से रिगार्डिंग जो भी कंप्लायंसेस होंगे उसके लिए तो आपको ओल्ड डेफिनेशन ही कंसीडर करनी है, बिकॉज जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं या जो हम डायरेक्टर रिपोर्ट बना रहे हैं वो बना रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 31 मार्च 22 तक, और 31 मार्च 22 को ओल्ड डेफिनेशन एप्लीकेबल थी। तो उस पूरे साल में हमने पूरा काम ओल्ड डेफिनेशन पे ही किया है। तो आपकी जो एनुअल फाइलिंग के डॉक्यूमेंट बनेंगे, वेदर अ बैलेंस शीट, वेदर अ डायरेक्टर रिपोर्ट, वो बनेंगे आपकी ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही। तो मेक श्योर कि जो भी ये चीजें बनेगी वो आपकी ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी बनेगी, जो भी हम फॉर्म्स या जो भी हम कंप्लायंसेस की बात करते हैं। तो न्यू स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ऑल दो चेंज हो गई है, बट आपकी एनुअल फाइलिंग ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको करनी पड़ेगी। अगर इस डेफिनेशन पे किसी का कोई डाउट या किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि स्मॉल एंड नॉन स्मॉल का, बिकॉज आई डोंट वांट कि आफ्टर दिस वेबिनार किसी का स्मॉल या नॉन स्मॉल का कोई डाउट हो। दैट शुड बी क्लियर कि बैलेंस शीट के लिए कौन सी डेफिनेशन लेनी है और वैसे कौन सी लेनी है। तो बैलेंस शीट, डायरेक्ट रिपोर्ट, इन सभी के लिए ओल्ड डेफिनेशन को ही कंसीडर करना है, दैट इज 2 करोड़ तक पेड अप कैपिटल एंड 20 करोड़ तक टर्नओवर ऑफ द कंपनी। अब जब हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं ना, तो मैं एक छोटा सा और पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, कारो। कारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से स्टेटमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कारो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कारो की एप्लीकेबिलिटी, कारो की एप्लीकेबिलिटी पे जब हम जाते हैं तो वी आर, इट इज वेरी क्लियर कि कारो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द स्मॉल कंपनी, व्हाटएवर इज द सिचुएशन, चाहे आपकी कितनी भी बोरोइंग्स है या कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता है, इट इज वेरी क्लियर अंडर द लॉ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अब कारो की एप्लीकेबिलिटी भी कौन सी डेफिनेशन से देखेंगे, तो वो भी हम ओल्ड डेफिनेशन से ही देखेंगे कि कारो एप्लीकेबल होता है या नहीं। अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का मेरे पास आया है, तो आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू कि किसी का कोई वो वाला क्वेश्चन या वैसे क्वेश्चन पेंडिंग नहीं हो। अब कंपनी लोग बोलता है स्मॉल कंपनी मींस जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ हो। अब मेरी 31 मार्च 21 की मेरी टर्नओवर थी 30 करोड़ और 31 मार्च 22 को मेरे टर्नओवर हो गई 15 करोड़। तो मतलब 31 मार्च 22 को 15 करोड़ होते ही मैं स्मॉल कंपनी में फॉल कर गया, बिकॉज मेरी 20 करोड़ से नीचे आ गई। अब इस सिचुएशन के बेस पे देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या 31 मार्च 22 के लिए कारो बनाना पड़ेगा या नहीं। मैं टाइप भी कर देता हूं अगर एनीवन वांट। 31 मार्च 2021 टर्नओवर 30 करोड़, 31 मार्च 2022 टर्नओवर 15 करोड़। स्मॉल कंपनी डेफिनेशन 20 करोड़ पे स्मॉल कंपनी होती है। अब 31 मार्च 22 के लिए कारो बनेगा या कारो नहीं बनेगा, आई जस्ट वांट आंसर फ्रॉम द पर्सन्स हु आर अटेंडिंग देयर। आप लोग भी अपने व्यूज दीजिए, चाहे चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो कि यस बनेगा या नो नहीं बनेगा। अब ये ऐसा पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से डिस्कशन किया है, बहुत सारे मैं बोल सकता हूँ कि वेबिनार से सेमिनार्स या व्हाट्सएप पे भी बहुत डिस्कशन हुआ है ये क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि इंटरप्रिटेशन इशू आ जाता है, या हम बोल सकते हैं कि हम एक हैबिचुअल होते हैं जिस चीज के, वो इशू आ जाता है। निवेश जी को अगर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट देखनी है तो उसके हिसाब से 30 करोड़ की है, बिल्कुल, तो वो तो फिर कारो तो एप्लीकेबल इस साल तो होगा ही होगा। एग्जैक्टली, कारो भी एप्लीकेबल होगा और स्मॉल कंपनी भी नहीं रही फिर वो नहीं इस साल में हो जाएगी, इस साल में हो जाएगी, वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगी, बट नेक्स्ट ईयर मतलब पर्पस ऑफ कारो बिकॉज लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का देखना है, जी जी जी। तो वो नहीं होगी फिर। अब जनरली क्या होता है सर, यार डेफिनेटली कंप्लीटली राइट। तो जनरली क्या होता है कि ये चीज बहुत सारे केसेस में क्या होती है कि बैलेंस शीट जब बनती है ना 31 मार्च 22 की, उसी के बेस पे सब कंप्लायंसेस को चेक कर लिया जाता है, और वहीं पे ये मिस्टेक होती है कि ये एप्लीकेबिलिटी हमें देखनी होती है। स्मॉल कंपनी बोलती है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, दैट इज 31 मार्च 2021,
तो जो भी हमें ये कारों की एप्लीकेबिलिटी, ये स्मॉल एप्लीकेबिलिटी देखनी है, पहले देखना पड़ेगा 31/21 का क्या स्टेटस है। अगर 31/21 को मेरी 30 करोड़ टर्नओवर थी तो मैं ऑब्वियसली नॉन स्मॉल कंपनी हूँ और मुझे कारों बनाना पड़ेगा फॉर दिस ईयर। जैसे इसी पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि बहुत बार एक चीज क्या होती है, अभी रिसेंट का एक एग्जांपल था, एक कंपनी की 31/22 की नेट प्रॉफिट क्रॉस हो गया 5 करोड़, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़। अब उनका ये आया कि जो हम अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, P&L बना रहे हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या उसमें CSR डिस्क्लोजर देने हैं। अब 5 करोड़ प्रॉफिट क्रॉस हुआ 31/22 को, तो मतलब आपके ऊपर CSR अब 22-23 में लगेगा। तो जो भी आपको डिस्क्लोजर देने हैं नेक्स्ट ईयर की जो भी बनाओगे देने हैं, इस ईयर नहीं देने हैं। तो सेम विद द कारो में 31/21 की टर्नओवर से देखना पड़ेगा कि कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। 31/22 की टर्नओवर से इंपैक्ट नहीं आएगा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए इंपैक्ट आएगा। दिवेश जी एक चीज और है, अगर मान लीजिए 31/3/22 को भी 30 करोड़ की उसकी टर्नओवर हो जाती है, तो इस साल तो वैसे भी वो स्मॉल कंपनी नहीं है, बट अगले साल इट विल बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी विद 15/9/22 के बाद की ये डेफिनेशन। डेफिनेशन ही 30 से उन्होंने 20 से 40 कर दिया है, जी, तो अगले साल भी वो स्मॉल में ही फॉल इस साल में कोई फर्क नहीं। अब तो ये तब होगा जब 31/22 को या तो 40 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो तो जाके एप्लीकेबल होगा, तो नहीं होगा। देवेश जी, जो CSR वाला भी आप बता रहे थे, हाँ जी सर। उसके अंदर 5 करोड़ से ऊपर जैसे प्रॉफिट होगा तो उसमें कमेटी तो ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म करनी जरूरी हो जाएगी CSR की। कमेटी आपको जरूरी है, कमेटी तो डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में, वो कैलकुलेशन और खर्चा नहीं करना पड़ेगा, खर्चा नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, बट वो एप्लीकेबिलिटी कमेटी, CSR कमेटी बनानी और बाकी चीजें तो इसी साल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ सर, आप 31/22 को आपका प्रॉफिट क्रॉस हुआ 5 करोड़ से ज्यादा, राइट, और डायरेक्टर रिपोर्ट में डिटेल कब तक की जाएगी, 31/22 तक की। 21/22 में तो कोई कमेटी है कुछ मेरे पे एप्लीकेबल नहीं था। नहीं, 21/22 में ही तो होगा प्रॉफिट जब ड्यूरिंग द ईयर हो गया तो। तो आपको ऑडिट के बाद पता चला ना आपका 5 करोड़ प्रॉफिट हुआ। ऑडिटेड उसमें सर, ऑडिटेड नेट प्रॉफिट थोड़ी लिखा हुआ है। नहीं सर, उसमें वो तो ऑडिटेड एवरेज प्रॉफिट्स वाली की जो बात है, उसमें ऑडिट कमेटी बनानी तो इसी साल जरूरी हो जाएगी, और जो खर्चा करना वो नेक्स्ट ईयर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आएगा। उसी पॉइंट पे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक मिनट सर, ऐसा है कि 31/3/22 का जो रिजल्ट है वो आपको पता लगेगा जुलाई अगस्त से पहले नहीं पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसलिए आपको जो कमेटी पहले जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट करेगी कि इस साल 5 करोड़ की प्रॉफिट हो गया, और डायरेक्टर रिपोर्ट में तो आएगा, एंड दे विल प्रपोज टू क्रिएट ए CSR वो कमेटी। फंड वगैरह नेक्स्ट ईयर ही होगा सर, 22-23 के अंदर, पर Exactly. डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर तो डालना पड़ेगा ना उसका। नहीं, CSR भी तभी होगा अगर आपकी एवरेज 5 करोड़ की पिछले 3 साल की आ जाती है। बिल्कुल ठीक है। CSR कमेटी भी 22-23 में बनेगी, 21-22 में नहीं बनी। ये बन नहीं सकती। तो आपकी जो डायरेक्टर रिपोर्ट में CSR कमेटी का डिस्क्लोजर है या मीटिंग का डिस्क्लोजर है, वो इस साल नहीं जाएगा, वो 31 मार्च 23 के बाद जाएगा, क्योंकि 31 मार्च 22 में आपका क्रॉस किया तभी तो 22 और 23 पे आपके एप्लीकेबल हो गया CSR। तो आपको सारी स्पेंडिंग भी 22-23 में करनी है, कमेटी भी 22-23 में बनानी है, मीटिंग्स भी 22-23 में करनी है, और इनका जो भी डिस्क्लोजर्स होंगे, लाइक अगर मैं यहाँ डिस्क्लोजर्स की बात करता हूँ कि डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ एक एनेक्स्चर बनता है, एक CSR2 फॉर्म जाता है, वो सब जाएंगे 31 मार्च 23 की डायरेक्टर रिपोर्ट, 31 मार्च 23 के AOC फॉर्म के साथ। तो 31 मार्च 22 पे कोई भी इंपैक्ट इस चीज का नहीं आएगा। बस एक चीज मैं इसमें जनरली सबको सजेस्ट करता हूँ, वो भी एक सजेशन है, मैंडेटरी नहीं है, कि इस साल जो डायरेक्टर रिपोर्ट क्लोज करोगे 31 मार्च 22 की, उसमें जस्ट CSR में इतना सा लिख देना चाहिए कि कंपनी पे अभी तक CSR एप्लीकेबल नहीं था, बट दिस ईयर ऑडिटेड फिगर कंपनी पे CSR एप्लीकेबल हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना, क्योंकि कमिटीज तो अभी आपके पास, देखो आप सितंबर में हो, फॉर एन एग्जांपल आपने सितंबर में बैलेंस शीट क्लोज की, अभी मार्च तक का टाइम है स्पेंडिंग के लिए भी, कमिटी क्रिएट करने के लिए भी, मीटिंग्स करने के लिए भी, तो इम्पैक्ट हमेशा वो नेक्स्ट ईयर आएगा। देवेश जी, मैंने जो कमेंट दिलवाया ना डायरेक्टर से, उसमें यही दिलवाया है कि फ्रॉम दिस ईयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रॉफिट्स all CSR compliance will have to be made and your directors are making arrangement for that. हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, वो आप कैसे भी सर, मतलब लैंग्वेज सब अपनी लिख ही सकते हैं, डेफिनेटली वी आर द प्रोफेशनल, वी हैव टू ड्राफ्ट इट, बट कोई भी मीटिंग कमेटी वो हमें इस साल नहीं डालनी है, वो 31 मार्च 23 के बाद वाली डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ही नोट होगी। So hope we are clear with the applicability of the CARO also along with the new definition of the small company. अगर इसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, तो मैं उस पर भी कोई क्लियरिटी चाहिए तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। So I think this point is also clear.
बिकॉज आई हैव जस्ट मेंशन सम पॉइंट इन माय शीट, तो मैं उसको क्लियर करता चलता हूँ. नेक्स्ट इज द एनुअल जनरल मीटिंग. अगर किसी का लेटर ऑन भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज यू कैन आस्क. जैसे मैंने बोला 6:30 तक हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल टेक अप द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. नेक्स्ट इज द एनुअल जनरल मीटिंग. अब एनुअल जनरल मीटिंग में इस साल एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का बहुत आया था कि एनुअल जनरल मीटिंग की कोई एक्सटेंशन या क्या कुछ है, तो प्रैक्टिकली अभी तक तो कुछ नहीं था. एनुअल जनरल मीटिंग की ड्यू डेट वाज द 30 सितंबर. उसमें मिनिस्ट्री ने इस साल कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया. लास्ट 2 इयर्स में नो डाउट मिनिस्ट्री ने बहुत सारे एक्सटेंशन दिए थे. लास्ट टू लास्ट ईयर 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया था, लास्ट ईयर 2 मंथ का एक्सटेंशन दिया था, बट दिस ईयर देयर इज नो एक्सटेंशन. इस साल हमारी जो ड्यू डेट थी बोल सकते हो एजीएम के लिए, वो 30 सितंबर ही थी. इन एनी केस अगर हमने 30 सितंबर में एजीएम नहीं की, नहीं दिखाई, उसके बाद दिखाते हो, तो दैट शैल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि मिनिस्ट्री ने पीछे एक सर्कुलर दिया था कि आप अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एजीएम करते हो तो 31 दिसंबर तक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एजीएम कर सकते हो. पहली बात, कंपनीज एक्ट में आज तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ जनरल मीटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था. ये फर्स्ट टाइम कोविड में आया 2020 में कि ईजीएम एजीएम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना अलाउ किया. फिर 2021 में भी ईजीएम 2022 में भी मिनिस्ट्री ने उसको कंटिन्यू रखा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ईजीएम एजीएम करना अलाउ किया. इस साल जो सर्कुलर आया, उस सर्कुलर में मिनिस्ट्री ने मेंशन किया कि अगर आप ईजीएम 31 दिसंबर तक भी करते हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हो तो आप कर सकते हो. अब उस सर्कुलर का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ये था कि जनरली क्या होता है, अगर कोई कंपनी एक्सटेंशन लेती है तो एक्सटेंशन तो आपकी पावर थी, आप आरओसी से ले सकते हो. अगर आपने कोई जनवरी तो दिसंबर तक की एक्सटेंशन ली हुई है या किसी केस में आप नहीं एजीएम कर पाए, अब आप ड्यू डेट के बाद कर रहे हो, ठीक है नॉन कंप्लायंस है, आप कंपाउंडिंग करवा लोगे, बट ड्यू डेट के बाद कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में भी अगर आप चाहो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो. सो जो एक्सटेंशन दी थी वो मोड की एक्सटेंशन दी थी, डेट की एक्सटेंशन नहीं दी. तो प्रैक्टिकली मोड की एक्सटेंशन से मतलब है कि अगर देखो कोविड सिचुएशन में ये नया प्रोविजन आया था, तो हो सकता है अब 31 दिसंबर के बाद कंपनीज एक्ट से जो सर्कुलर मिनिस्ट्री लेके आई थी, अब वो हटा दे कि ईजीएम एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकती है. तो दिस ईयर देयर वाज नो एक्सटेंशन फॉर द एजीएम. एजीएम की ड्यू डेट जो 30 सितंबर ही थी, दैट वाज द 30 सितंबर. उसके अलावा कोई भी एक्सटेंशन नहीं है. अगर आप 30 सितंबर के बाद अपनी एजीएम दिखाते हो तो दैट शैल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वी कैन डिस्कस. जनरली सर को पता है, राजेश जी को, जब भी फिजिकल सेशंस होते थे, आई हैव रेज्ड सो मेनी क्वेश्चन कि जितना सामने से आते थे उतनी मेरी तरफ से भी होते थे, तो वेबिनार्स में वैसे ही पूछ सकता हूँ. तो एक जनरली इशू आता है कि बहुत बार लोगों का ये होता है कि हमने एजीएम 30 सितंबर को होल्ड करनी है बट फाइनेंशियल्स रेडी नहीं, तो हम 30 सितंबर को एजीएम दिखाते हैं बट उसको एडजर्न दिखा देते हैं. और एडजर्न करके, एडजर्न में प्रोविजन होता है कि नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे को आपको रखनी होती है. तो मैनी पर्सन हैज सेड कि हम उसको नेक्स्ट वीक में रखेंगे और नेक्स्ट वीक में एजीएम कर लेंगे, 6 सितंबर 7 सितंबर व्हाटएवर. तो वेदर इट इज एज पर इट इज अ कंप्लायंस ऑफ लॉ और इट इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ. एडजर्न मीटिंग का प्रोविजन लॉ में है. आपने 30 सितंबर को एजीएम रखी और आपने बोला मेरी बैलेंस शीट रेडी नहीं है, इसलिए मैं एडजर्न करके नेक्स्ट वीक में एजीएम करूंगा. तो नहीं सर, वो तो एडजॉर्न सिर्फ कोरम की वजह से हो सकती है ना. नहीं, एडजर्न कोरम की वजह से हो सकती है, पर एडजर्न में ये भी होता है ना कि आपके पास एजेंडा है, आपने एजेंडा को फुलफिल नहीं कर सकते, उसमें भी आप एडजर्न करवा लेते हो. चलो आपने कोरम ही नहीं प्रेजेंट की, बैलेंस शीट तो प्रेजेंट करनी ही पड़ेगी ना. नहीं, जनरली बहुत सारे केसेस में आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आता है कि सर बैलेंस शीट नहीं बनी, चलो कोरम भी नहीं प्रेजेंट करेंगे, शेयर होल्डर तो अपने ही है, नहीं प्रेजेंट होंगे, एडजर्नमेंट दिखा लेंगे, एडजर्न करके नेक्स्ट वीक तक बैलेंस शीट बन जाएगा, नेक्स्ट वीक में एजीएम भी हम कर लेंगे. तो वेदर इट इज अ कंप्लायंस ऑफ द लॉ. नहीं सर, इसमें यदि आप नोटिस भेजते हो एजीएम का, उसके साथ बैलेंस शीट नहीं भेजनी होती. हाँ, नहीं होता है ना, देखो सर, बट यहाँ पे देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ द, हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, अनऑडिटेड बैलेंस शीट का भी कांसेप्ट है ना. एओसी 4 भी आपको ऑप्शन देता है कि ऑडिटेड है क्या अनऑडिटेड है. और मेनी कंपनीज हैव डन दिस कि वो एजीएम होल्ड करते हैं और उसमें ये लगाते हैं कि हम शॉर्टर नोटिस पे उससे पहले एजीएम से पहले डायरेक्ट बैलेंस शीट सर्कुलेट कर देंगे, बट दे डोंट सर्कुलेट इट, और उसके बाद वो एडजर्नमेंट दिखा देते हैं. डेफिनेटली यहाँ पे भी काफी सारे ग्लिचेस है, बट मेनी कंपनीज ट्राई टू डू दिस. तो अब इसमें इशू क्या आता है कि एडजर्न भी कर ली आपने, चलो किसी भी लीगल एंगल को घुमा के एडजर्न करवा ली मीटिंग. अब एडजर्न करवा के आपने नेक्स्ट वीक में एडजर्न मीटिंग होल्ड की,
बट वो whether it is a compliance of the law कि नेक्स्ट वीक में होल्ड करना, क्यों? या स्टिल ये नॉन कंप्लायंस माना जाएगा? It will be a compliance. It will be compliance because the law permits it. कि अगर आपकी उस दिन कोरम नहीं किसी वजह से नहीं Yes. होती तो नेक्स्ट वीक में आप कर सकते हो, मेरा भी व्यू यही मगर है, आपकी जो डेट मानी जाएगी वो वही 30 सितंबर या 20 जिस दिन आपने ओरिजिनल मीटिंग होल्ड की थी वही वही मानी मानी जाएगी। जाएगी। अब इस केस में क्या है सर, रिसेंटली लास्ट 3-4 ईयर में हमने काफी सारी कंपाउंडिंग मिनिस्ट्री से, आरओसी से करवाई है, आरडी से करवाई है। डेट ऑफ What is the interpretation of the law? Law क्या बोलता है? Adjourned meeting should also be completed within due date. ऐसा किया होता ना, 10 सितंबर की एजीएम रखी थी, ओके ओके, आपने 17 को दोबारा कर ली, that is okay. But adjourn should also be complete within the due date. अदरवाइज तो यही सर्कल चलेगा कि 30 को रखो, adjourn कराओ, नेक्स्ट वीक में रखो, adjourn कराओ, एक और 7 दिन बाद रखो, adjourn कराओ। तो अगर adjourn मीटिंग भी आपकी ड्यू डेट के बाद होती है, then it is also a non compliance of the law, और वो आपको कंपाउंडिंग करवाना वहां पे भी मैंडेटरी है। So adjourn meeting should also complete within due date. Hope it is for everyone. किसी का एक कारो से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, my net was off in between। अच्छा, कारो का पॉइंट we will discuss मैम at the end of the seminar again, जो कारो का पॉइंट है उनका। दिवेश जी एक चीज बताइए, जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है रिगार्डिंग द लोन्स बाय द डायरेक्टर्स, हाँ जी, मैंने क्वेश्चन भी डाला है, और उसके बाद दैट द ऑडिटर हैज टू सी वेदर द लोन वाज गिवन बाय बोरोइंग फंड्स। राइट। So can I take a declaration only from the director that it is not borrowed, or I have a further duty to verify it? ओके सर, देखो लॉ बोलता है 2014 में ये लॉ आया था, तब से ये प्रोविजन है कि अगर आप डायरेक्टर से बोरो करते हो तो डायरेक्टर के ऑन फंड से होना चाहिए, वो बोरोड फंड से नहीं होना चाहिए। और उसके लिए लॉ में कंडीशन क्या लिखी है कि डायरेक्टर विल गिव अ डिक्लेरेशन। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि अगर, जो मुझे लगता है कि देखो एक ऑडिटर की भी एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है कि वो कितना अंदर तक जा सकता है और कितनी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इफ अ ऑडिटर रिलाई ऑन द डिक्लेरेशन, अकॉर्डिंग टू मी इट इज करेक्ट एज पर लॉ। But I don't have to ask for the bank passbook to see whether the things, I am not required to do that. Exactly, because your scope is up to the company. It's nothing like you will go into the personals of the financials of the directors and you will work on that. If director is giving the declaration, if he is giving a wrong declaration, definitely if any case there will be any non-compliance, or in case any notices will be there, he have to suffer on that. हाँ, but ये जरूर करना चाहिए कि ऑडिटर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के लिए वो डिक्लेरेशन रख लेना चाहिए। रखना चाहिए। हम लोग नहीं। Sir, also unless the director is also your client and you have all his data with you. This is the important point. Unless the director is अच्छा, with you. दिवेश जी एक चीज और है, जैसे एक केस में दो तीन कंपनी केस में उन्होंने डायरेक्टर ने पैसे बोरो किए थे क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट अटैच थे, राइट। तो वो हमने उसमें क्वालिफिकेशन दे दी। तो इस बार क्वालिफिकेशन देने के बजाय यहाँ पर डेक्लेरेशन काफी है। हाँ देखो, आपके पास डेक्लेरेशन है, डायरेक्टर ने आपको डेक्लेरेशन दे दी कि मैंने मेरे ओन फंड से पैसा दिया। नहीं, उसने कहा मैंने पैसे बोरो किए हैं। अच्छा, उसने बोरो किए हैं, पैसे बोरो किए और हमने उसको क्वालिफिकेशन में डाल दिया था। हाँ। मगर अब तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे आर आस्किंग टू स्पेसिफाई दैट, सो आई डोंट नीड टू गिव ए क्वालिफिकेशन। नहीं सर, क्वालिफिकेशन तो है ही ना, ये जो नॉन कंप्लायंस इज अ नॉन कंप्लायंस, तो उसको मैं क्वालिफिकेशन में भी दूंगा और यहाँ पर रिपोर्ट में भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो आपको भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली बोलता है आपको सेक्शन 73 पे कमेंट करने के लिए। हाँ, पहले नहीं था ना, ये तो इस साल से आया है। कमेंट मांगता है, जी आपको वहाँ देना ही पड़ेगा वो चीज। ठीक है जी, ठीक है। आजकल देवेश जी एक चीज बताइए, हाँ जी सर। अगर नोटिस 1 सितंबर को इशू कर दिया, ठीक है सर, और उसके साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं लगाई क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं, फाइनलाइज नहीं हुई, ठीक है, बैलेंस शीट 25 तारीख को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोबारा अप्रूव करते हैं और सर्कुलेट कर देते हैं, 30 तारीख को मीटिंग में प्रेजेंट हो गई वो बैलेंस शीट एजीएम में, तो ये तो नॉन कंप्लायंस नहीं मानी जाएगी। हाँ, अब ये पहले बोलूं, मैं डायरेक्टली बोलूं तो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा अनटिल अनलेस लॉ में लिखा है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट नोटिस के साथ नहीं, मतलब 21 दिन के नोटिस के साथ नहीं देते हो, 21 डेज के नोटिस के साथ, उसके बाद देते हो शॉर्टर पे, तो आपको उसके लिए 90% ऑफ मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। सर वो तो शॉर्टर नोटिस का हो गया ना, ये तो डॉक्यूमेंट एक और शॉर्टर नोटिस की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए भी यही कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको। अच्छा, तो कंसेंट वो साथ में अगर वो ले लें, वो तो कहीं जाती नहीं कंसेंट, तो बिल्कुल जाती नहीं है, लेकिन नहीं, आप consent ले लो तो प्राइवेट बिल्कुल। लिमिटेड कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड नहीं 4 या प्राइवेट 6 शेयर होल्डर। नहीं ऐसा है सर, प्राइवेट लिमिटेड में वो बात कर रहे हैं, अगर
नहीं, प्राइवेट लिमिटेड में वो इसलिए बात कर रहे हैं कि अगर जैसे यूडीएन आपके ऊपर में हुई तो आपने 29 सितंबर को बैलेंस शीट साइन करने का यूडीएन जनरेट कर दिया ठीक है, और नोटिस एजीएम का जो है वो 1 सितंबर का ही दिखाया था, राइट। तो उस केस में क्या रहेगा? अब इस केस में देखो, आप एजीएम मान लो उसमें 30 को करना, तो ऑडिटेड बैलेंस शीट सर्कुलेट नहीं हुई ना, बाकी तो नोटिस तो मीटिंग कन्वीन कर लिया विद ए डॉक्यूमेंट विच वाज शेड्यूल्ड टू बी अटैच्ड बट नॉट सेंट, तो उस केस में एज सच एजीएम की नॉन कंप्लायंस तो नहीं होगी। मैं इसमें सर वही बता रहा हूँ, दो चीजें कर सकते हैं इसमें। देखो एजीएम तो आप 30 को करोगे ही करोगे, उसमें बैलेंस शीट अडॉप्ट हो गई और वो सबमिट हो जाती है, सबमिट कर देते हैं तो आप 30 29। को करोगे। अब इसमें ना आप दो चीजें कर सकते हो। देखो, इफ इट इज अ क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनीज है और आपकी बैलेंस शीट 29 सितंबर को रेडी होती है, तो आप एक को नोटिस इशू करो ही मत, आप 29 को ही नोटिस इशू करो। Yes, yes. The short सर term notice. अगर वो कर देते, कंसेंट ले लो उन्हीं से। नहीं अगर वो कर देते हैं एक को ही और 29 को बैलेंस शीट साथ में लगा के सप्लीमेंट्री नोटिस दे देते हैं कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट जो उस टाइम नहीं था मीटिंग के लिए ये प्रेजेंट कर दिया जाए, ये आपको सर्कुलेट कर दिया, तो 30 तारीख वाली सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो शॉर्ट टर्म नोटिस का है वो एक अलग है, पर नोटिस में 1 तारीख की डल के वो इनवैलिड तो नहीं होगा, क्योंकि एजीएम में तो अडॉप्ट हो गई, लॉ कहता है एजीएम में अडॉप्ट होनी चाहिए बैलेंस शीट। अगर आपने 1 तारीख को भी नोटिस सर्कुलेट कर दिया, उसमें बैलेंस शीट नहीं थी, हाँ। तो 29 को जब बैलेंस शीट बन रही है तो दोबारा उसके साथ वो बैलेंस सप्लीमेंट्री नोटिस दे देंगे, सप्लीमेंट्री नोटिस कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज कंसीडर नहीं होगा। मेरा पॉइंट है कि शॉर्टर नोटिस कंसेंट फिर ऐसे केस में लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल नॉट कंसीडर। इसका मतलब 1 तारीख को जो नोटिस हमने इशू किया वो नल एंड वॉइड हो गया। नहीं, उसके जरूरत ही नहीं थे। क्या हो सकता है, Superfluous notice. एजेंडा भी हो सकते हैं ना, अच्छा, इसमें तो हो सकता है दो एजेंडा तो वैलिड किया, इस एजेंडा के लिए आप शॉर्टर नोटिस ले रहे हो कि तो सर डॉक्यूमेंट दो एजेंडा तो होते ही है ना, एक बैलेंस शीट का एक ऑडिटर का, दो तो रहते ही हैं हमेशा। 5 साल में एक ही बार तो होता है ना, अरे 5 जो भी है वो लेटर सी कि वो दो तो एजेंडा रहते ही हैं, उससे ज्यादा 5वां साल ही हो। वो यही कह रहे हैं ना कि अदर के लिए तो इनवैलिड हो गया ना, अदर के लिए वैलिड है, राजेश बैलेंस शीट के लिए जी अगर डायरेक्टर्स ने एक नोटिस भेजा है ना तो उनको अपनी मीटिंग में तो कहना पड़ता है कि नोटिस भेजा जाए, तो हाँ, वो तो नल एंड वॉइड नहीं, वो नल एंड वॉइड नहीं हो सकता, हाँ एग्जैक्टली वही चीज है। ओनली वो null and void नहीं हो अटैचमेंट सकता। वो डेफिशिएंट हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट साथ में जाना था वो नहीं गया, हाँ तो उसके उसकी लिए जगह आप- अनऑडिटेड भेज दी। और शॉर्टर नोटिस कंसेंट लो, उसके लिए शॉर्टर कंसेंट लो कि शॉर्टर पे रिसीव किया है एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट, जो 90% की जो सेक्शन बोलता है। 90% शेयर होना, shorter notice mandatory. हाँ जी, सर वो consent of 90% shareholder is mandatory for the shorter notice. चाहे आप 2 दिन का लो, 2 घंटे का लो। और मेरे को तो एक चीज पता है, अगर 21 दिन से कम का टाइम है तो शॉर्टर नोटिस है, बिल्कुल सर, कंसेंट तो आपको लेनी ही पड़ेगी। exactly, 100% correct सर। बिल्कुल। नेक्स्ट अब अपना है इसी में वगैरह जो एनुअल फाइलिंग के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, द नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट आर द 2 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स। कुछ स्मॉल कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, कुछ नॉन स्मॉल कंपनीज की बात करते हैं, तो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट होती है वो स्मॉल की और नॉन स्मॉल की काफी डिफरेंट होती है। जो हमारी डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनती है ना, वो बनती है एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3। सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 में जितने भी डिस्क्लोजर दिए होते हैं वो हमारी डायरेक्टर रिपोर्ट का पार्ट बनते हैं, और प्लस 134 सबसेक्शन 3 के साथ में आपको जो उस चैप्टर का रूल 8 है उसमें भी जितने डिस्क्लोजर दिए होते हैं दैट आल्सो कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट। तो 134 सबसेक्शन 3 प्लस रूल 8 दोनों को मिला के जब हम डिस्क्लोजर्स देते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज अ फुल फ्लेज डायरेक्टर रिपोर्ट। बट जब हम बात करते हैं ना स्मॉल कंपनीज की, अभी 31 मार्च 22 के लिए हम ओल्ड डेफिनेशन वाली कंपनीज की ही बात करते हैं। स्मॉल कंपनीज की जब डायरेक्टर रिपोर्ट की बात करते हैं ना, हमें 134 सबसेक्शन 3 का डिस्क्लोजर नहीं देने पड़ते। स्मॉल कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट आप रूल 8A है, 8A रूल 8A में 10 और 11 डिस्क्लोजर है, वो 10-11 डिस्क्लोजर देना इट itself इज अ कंप्लीट डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ द स्मॉल कंपनी। तो जब भी हम बात करते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट की स्मॉल कंपनी या नॉन स्मॉल कंपनी, तो उस केस में हमें ये सबसे पहले देखना है कि अगर नॉन स्मॉल है तो उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट लेंथी बनेगी, स्मॉल है तो उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट शॉर्ट में बनेगी। और इस साल डायरेक्टर रिपोर्ट में कुछ मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट भी किए हैं, आई एम जस्ट शोइंग दैट, एक सेकंड। हाँ, डायरेक्टर रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने थोड़े से अमेंडमेंट्स किए हैं, बोल सकते हैं थोड़े से चेंजेस किए हैं। पहली चीज जो ये अमेंडमेंट है डायरेक्टर रिपोर्ट का, ये स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है।
डायरेक्टर रिपोर्ट की अमेंडमेंट सिर्फ नॉन स्मॉल कंपनी पे ही एप्लीकेबल है, जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। बिकॉज जैसा कि मैंने अभी बोला, रूल 8 में जो भी डिस्क्लोजर दिए हुए हैं वो सिर्फ नॉन स्मॉल कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट को इम्पैक्ट करते हैं, वो स्मॉल कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट को इम्पैक्ट नहीं करते। तो रूल 8 में इन्होंने 2 नए डिस्क्लोजर एड ऑन कर दिए। नंबर 1, डिटेल ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द आईबीसी 2016 ड्यूरिंग द ईयर अलोंग विद देयर स्टेटस। अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई आईबीसी की एप्लीकेशन फाइल की है या कंपनी के अगेंस्ट कोई आईबीसी की एप्लीकेशन फाइल हुई है, तो उसकी डिटेल और उसका स्टेटस आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। नंबर 2, the detail of the difference between the amount of the valuation at the time of one time settlement and at the time of acceptance of the loan। जब आपने बैंक से वन टाइम सेटलमेंट किया या बैंक से जब लोन एक्सेप्ट किया, दोनों के टाइम अगर आपने वैल्यूएशन की है और दोनों की वैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन में डिफरेंस था, तो यू हैव टू गिव द रीजन कि दोनों में डिफरेंस क्यों था। तो ये 2 नए क्लोज हैं। अगर आप किसी भी नॉन स्मॉल कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएंगे तो दीज 2 आर द मैंडेटरी क्लोज जो आपको अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेंगे दिस ईयर। अगर नहीं करते हैं, इनमें से कोई भी एक क्लोज या मेंशन नहीं करते रह जाता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 134। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमें ये दोनों डिस्क्लोजर तो बैलेंस शीट सॉरी डायरेक्टर रिपोर्ट में देने ही है। अब जब हम बात करते हैं ना स्मॉल कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट की, तो जैसा मैंने अभी बोला कि स्मॉल कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो रूल 8A के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन डायरेक्टर रिपोर्ट रूल 8A के अकॉर्डिंग बनती है। तो रूल 8A के अकॉर्डिंग जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है ना, उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 डिस्क्लोजर है जो हमें देने होते हैं। बट हमारी डायरेक्टर रिपोर्ट उन 10 ही डिस्क्लोजर पे खत्म नहीं होती है, हमें उसके अलावा भी कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, जैसा कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के कंप्लायंस। हमें लिखना पड़ता है कि कंपनीज ने क्या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के कंप्लायंस किए या नहीं किए। कंप्लायंस ऑफ द पोस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। पोस्ट एक्ट में लिखा है कि हर कंपनी को अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में रिपोर्टिंग करनी है, वो आपको करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं अभी स्क्रीन पे आपको जनरली दिखा रहा हूँ, फाइनेंशियल समरी हमें देनी पड़ती है, स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, चेंज इन डायरेक्टरशिप, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई डायरेक्टरशिप में चेंजेस हुए तो दैट वी हैव टू मेंशन, कमेंट बोर्ड्स कमेंट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट यू हैव टू मेंशन, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ड्यूरिंग द ईयर, जो मीटिंग हुई है ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर, डिटेल ऑफ दैट एंड हु हैव अटेंडेड दैट, उनकी डिटेल भी आपको मेंशन करनी पड़ती है। पर्टिकुलर ऑफ द लोन ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कोई भी ड्यूरिंग द ईयर लोन दिया है या कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। हाँ, दिस इज अ पॉइंट टू डिस्कस। अब एक पॉइंट आता है, क्या MGT 9 बनाना पड़ता है कंपनी को अभी भी डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ? क्या अभी भी MGT 9 बनाना पड़ता है हमें जो डायरेक्टर रिपोर्ट्स के साथ? So practically MGT 9 has been totally removed, totally deleted from the Companies Act. Companies Act में से MGT 9 डिलीट हो चुका है लास्ट ईयर ही। तो लास्ट ईयर से अब कंटिन्यू, चाहे आज की बात करें आने वाले ईयर्स में बात करें, तो किसी भी कंपनी को MGT 9 बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द MGT 9, बट उसके प्लेस पे एक प्रोविजन सभी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी की हम बोल सकते हैं सॉरी कि आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है, तो चाहे आप एक स्मॉल कंपनी हो चाहे आप एक नॉन स्मॉल कंपनी हो, इफ यू आर हैविंग अ वेबसाइट, तो आपको अपनी वेबसाइट पे एनुअल रिटर्न को पब्लिश करना मैंडेटरी है। अब आज की डेट में क्या है कि मोस्टली कंपनीज हैविंग द वेबसाइट। अगर आप डायरेक्टर के विजिटिंग कार्ड देखोगे उस पर वेबसाइट मेंशन होती है, अगर आप कंपनी का लेटर हेड देखोगे उस पर वेबसाइट मेंशन होती है, कंपनी के नाम से गूगल कर लो कंपनी की वेबसाइट मिल जाएगी। तो अगर आपकी कंपनी वेबसाइट मेंटेन करती है, अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है, तो विदाउट एनी इश्यू यू हैव टू पब्लिश योर एनुअल रिटर्न, मींस MGT 7। इट इज मैंडेटरी फॉर योर कंपनी कि आपको MGT 7 पब्लिश करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, और जहां पे वो MGT 7 आपकी साइट पे पब्लिश हुआ है उसका लिंक आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। तो इट इज मैंडेटरी कि आपकी डायरेक्ट MGT 7 एनुअल रिटर्न आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो। और जनरली क्या होता है कि मैंने बहुत सारे सेमिनार वेबिनार में जब ये पॉइंट डिस्कशन होता है तो जनरली यही क्वेश्चन आता है क्या स्मॉल कंपनीज को भी ये करना पड़ेगा? तो हाँ, स्मॉल का हो नॉन स्मॉल हो, यहाँ कोई मैटर नहीं करता। हर कंपनी को अगर जिसकी भी वेबसाइट है अपनी वेबसाइट पे एनुअल रिटर्न पब्लिश करना मैंडेटरी है। और सिर्फ पब्लिश करना नहीं,
उसको पब्लिश करने के बाद जहां पे वो पब्लिश हुई है उसका लिंक भी आपको अपनी एनुअल डायरेक्टर रिपोर्ट में देना पड़ेगा। अब जनरली क्या होता है, अगर आपकी वेबसाइट है ना तो सिर्फ इतना सा कंप्लायंस नहीं है कंपनी लो के और भी बहुत सारे कंप्लायंस आपको करने पड़ते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो अगर आपकी कंपनी कोई भी ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या कोई भी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग करती है तो आपका जनरल मीटिंग का नोटिस आपकी वेबसाइट पे पब्लिश होना मैंडेटरी है। तो अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो जनरल मीटिंग के नोटिस पब्लिश होना मैंडेटरी है। सेकंड, अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है तो कोई भी डायरेक्टर अगर रिजाइन करता है तो उसका रेजिग्नेशन लेटर साइट पे पब्लिश होना मैंडेटरी है। तो ये कुछ चीजें अगर एक कंपनी को अपनी वेबसाइट पे डालना मैंडेटरी है। वापस आते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट पे। 8th क्लॉज है ऑडिटर्स। आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर का डिस्क्लोजर देना होता है कि कब अपॉइंट हुआ, कब तक के लिए अपॉइंटमेंट है। मटेरियल चेंज एंड कमिटमेंट, अगर कुछ ऐसा मटेरियली चेंज हुआ है आफ्टर 31st मार्च बट टिल द डेट ऑफ द साइनिंग ऑफ द डायरेक्टर रिपोर्ट, मतलब 31st मार्च के बाद बट डायरेक्टर रिपोर्ट साइन करने की डेट तक अगर कुछ भी ऐसा चेंज हुआ है जिससे मटेरियली इंपैक्ट हुआ है कंपनी पे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। Then next are the significant and material orders passed by the regulators or tribunals. अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने या किसी रेगुलेटर ने कोई भी नोटिस, कोई भी ऑर्डर इशू किया है आपकी कंपनी के अगेंस्ट या आपकी कंपनी में, तो आपको उसकी डिटेल भी डायरेक्टर रिपोर्ट में देना मैंडेटरी। अभी हम सिर्फ स्मॉल कंपनी का डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज आज की डेट में 80% कंपनी स्मॉल कंपनी में फॉल कर गई है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। अब देखिए ये जो 11 डिस्क्लोजर थे ना, ये 11 डिस्क्लोजर तो थे एज पर रूल 8A। जो रूल 8A है डायरेक्टर रिपोर्ट के सेक्शन का, सेक्शन 134 का जो रूल 8A है उसके अकॉर्डिंग ये 11 डिस्क्लोजर एवरी स्मॉल कंपनी को देना ही है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे डिस्क्लोजर है जो रूल 8A में या 134 में कहीं नहीं लिखे बट देने पड़ते हैं। नंबर 1 जो मैं नंबर 12 बोल सकता हूँ, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। अब आप चाहे एक स्मॉल कंपनी हो या एक नॉन स्मॉल कंपनी हो, कोई भी टाइप की आप कंपनी हो, आपको अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में ये डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है कि आपके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं या सेक्रेटरी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होते। डिपॉजिट्स, अगर आपकी कंपनी ने कोई भी लोन लिए हुए हैं डायरेक्टर से, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट का डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। प्रिवेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट और वर्कप्लेस पोश, पोश का कंप्लायंस हर कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, तो हर कंपनी को पोश का डिस्क्लोजर अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में देना मैंडेटरी है। कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी, सेक्शन 188 बोलता है कि एवरी कंपनी को डायरेक्टर रिपोर्ट में आरपीटी का डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है, तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है। तो ये 15 ऐसे डिस्क्लोजर है जो एवरी कंपनी को अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में देना ही पड़ेगा। हम तो स्मॉल की बात कर रहे हैं, स्मॉल में तो डेफिनेटली ये बहुत कम है। यही मैं नॉन स्मॉल की बात करता तो यही 15 डिस्क्लोजर चेंज होकर 30 डिस्क्लोजर बन जाते हैं। पर व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू कि यू विल बी अवेयर, यू मस्ट बी अवेयर कि अगर इस साल आपको डायरेक्टर रिपोर्ट बना रहे हो या चेक कर रहे हो तो यू शुड चेक कि ये 15 से कम डिस्क्लोजर है तो कौन सा डिस्क्लोजर मिसिंग है, क्योंकि ये 15 तो ऐसे है जो मैंडेटरी है, इसमें कुछ भी मिस करने लायक नहीं है। तो मेक श्योर जो भी डायरेक्टर रिपोर्ट आप वेटिंग कर रहे हो, जो भी डायरेक्टर रिपोर्ट आप बना रहे हो, उसमें ये 15 डिस्क्लोजर आपके प्रॉपरली होने चाहिए। So hope we are clear with the point of the director report. डायरेक्टर रिपोर्ट में किसी का कोई डाउट? आई थिंक अभी तक हम क्लियर है डायरेक्टर रिपोर्ट पे भी, जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वी आर क्लियर ऑन दैट। अब आ जाते हैं, अब थोड़ा सा 10-15 मिनट हम लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अमेंडमेंट है। नो डाउट मोस्टली कंपनीज आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके हैं, बट स्टिल अभी भी नो कि 7 अक्टूबर अभी टैक्स ऑडिट की निकली है, तो टैक्स ऑडिट वाली तो बन चुकी है, बट बाकी सभी में हम थोड़ा बहुत वर्किंग कर सकते हैं। तो हम जस्ट कमिंग ऑन द दैट पॉइंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले सॉरी एक छोटा सा एक पॉइंट था, ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट में भी इस साल अमेंडमेंट है। ऑडिटर रिपोर्ट हमारी बनती है एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आप हमेशा ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हो। बिकॉज एक ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट ऐसी है कि इन दो रिपोर्ट्स का कोई फॉर्मेट नहीं है। ये दोनों रिपोर्ट किसी भी फॉर्मेट में नहीं बनती है, ये दोनों रिपोर्ट डिस्क्लोजर बेस्ड है।
जैसे 143 सबसेक्शन 3 में कुछ डिस्क्लोजर्स मेंशन किए हैं, वो डिस्क्लोजर्स आपको हर ऑडिटर को, हर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में मेंशन करना मैंडेटरी है। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के डिस्क्लोजर्स ऑडिटर रिपोर्ट में जाते हैं। अलोंग विद दैट सिर्फ 143 सबसेक्शन 3 से ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं होती है, उसके साथ आपको रूल 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल भी फॉलो करना पड़ता है। तो 143 सबसेक्शन 3 प्लस रूल 11 जब ज्वाइन कर देते हैं तब हम बोल सकते हैं कि हमारी एक कंप्लीट ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। इस साल मिनिस्ट्री ने क्या किया है, उन्होंने रूल सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। मिनिस्ट्री ने जो अमेंडमेंट किया है वो किया है रूल 11 में। तो रूल 11 में अभी तक 4 डिस्क्लोजर थे A to D 4 डिस्क्लोजर रूल 11 में थे जो हमें देने पड़ते थे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, डिस्क्लोजर नंबर D को डिलीट कर दिया है कि इन्होंने बोला जो डिस्क्लोजर D है वो इस साल की ऑडिटर रिपोर्ट में हमें नहीं देना है। D क्या है, स्पेसिफाइड बैंक नोट। 2016 में हमें याद है कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम स्पेसिफाइड बैंक नोट का प्रोविजन आया था। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मिनिस्ट्री ने अमेंड करके स्पेसिफाइड बैंक नोट का डिस्क्लोजर डाला था ऑडिटर रिपोर्ट में। तो ये ऑडिटर रिपोर्ट में स्पेसिफाइड बैंक नोट का डिस्क्लोजर सभी कंपनीज को देना पड़ता था। इस साल से एज यू ऑल आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आई जस्ट डिस्कसिंग विद यू कि इस साल से आप लोगों को अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में स्पेसिफाइड बैंक नोट का डिस्क्लोजर नहीं देना है। उसकी जगह 3 नए डिस्क्लोजर ऐड हो गए हैं, E, F और G। E की बात करते हैं। अभी E में क्या है, इस साल की जब आप लोग बैलेंस शीट भी बना रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि नोट्स टू अकाउंट में बहुत सारे नए डिस्क्लोजर्स आ गए हैं। 16 डिस्क्लोजर्स तो आपके P&L और बैलेंस शीट से रिगार्डिंग डायरेक्टली इन्होंने नोट्स टू अकाउंट में ऐड ऑन कर दिए। उसके अलावा भी कुछ डिस्क्लोजर ऐड ऑन किए हैं। उसमें एक डिस्क्लोजर जो है उस पर आपसे रिपोर्टिंग मांग रही है मिनिस्ट्री। डिस्क्लोजर ये है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये नहीं रीड करता, अगर आपकी कंपनी ने कोई भी लोन दिया है, इन्वेस्टमेंट दी है या गारंटी दी है या एडवांस दिया है किसी, मतलब कंपनी ए है, एग्जांपल के लिए यू आर कंपनी ए, आपने कोई लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी बी में, एंड इस कंडीशन पे कि कंपनी बी वो लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट कंपनी सी में करेगी या किसी सी को देगी, तो अगर ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, ऐसा कोई भी लोन दिया है, तो कंपनी को अपना डिस्क्लोजर देना है बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में, और सेम लेने वाली कंपनी को भी देना है। ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को जो रिपोर्ट करना है वो ये करेगा, बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर that the auditor has considered reasonable and appropriate in this circumstance, nothing has to come their notice that has caused to them believe that representation under 1 or 2 are material misstatement। ऑडिटर क्या करेगा, जो डायरेक्टर ने अपनी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में ऊपर वाले दोनों डिस्क्लोजर दिए हैं, ऑडिटर उस डिस्क्लोजर को चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा, अपनी रिपोर्ट में कमेंट देगा कि जो डिस्क्लोजर दिए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। अगर ऑडिटर को लगता है करेक्ट है, दैट इज ओके, अगर उसे लगता है करेक्ट नहीं है तो दे हैव टू मेंशन इट। दिस इज द फर्स्ट न्यू डिस्क्लोजर। देवेश जी थोड़ा सा इस पे डेलिब्रेट कर देंगे इसके ऊपर कि हाउ द ऑडिटर्स कैन वेरीफाई दिस डिटेल्स। अब ये सर आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है सभी को, कि इस पॉइंट में लिखा है कि कंपनी ए ने अगर कंपनी बी में इन्वेस्ट किया फॉर द पर्पस कि कंपनी बी कंपनी सी में इन्वेस्ट करेगी, तो ऑडिटर को इसको वेरीफाई करना है। अब लीगली क्या पॉइंट आता है, वी आर द ऑडिटर ऑफ द कंपनी ए, तो कंपनी ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हमारा एक्सेस है, कंपनी ए के रिकॉर्ड्स पे हमारा एक्सेस है, तो वो हम चेक कर सकते हैं, बट वी डोंट हैव एनी एक्सेस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी बी, तो हाउ वी कैन चेक दैट। इवन दिस इज द प्रॉब्लम एवरीवन इज फेसिंग। इवन जो ICAI ने अपना गाइडेंस नोट भी इशू किया है, they are also right now silent on this point कि how a person, how an auditor can access the record of the company B. So no doubt sir, this is the point which is still pending for the clarification, whether from the ICAI side or still very we can say pending from the clarification from the ministry side कि अगर ऑडिटर को वेरीफाई करना है तो कैसे कर सकता है। देखो इसमें जो मुझे लगता है कि जो कुछ वेयर्स है या कुछ पॉइंट्स है कि ऑडिटर कैसे वेरीफाई कर सकता है। नंबर 1, कंपनी कोई भी लोन देगी, गारंटी देगी, इन्वेस्टमेंट देगी, तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना मैंडेटरी है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा देती है तो 186 के अकॉर्डिंग जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना भी मैंडेटरी है। तो एज अ ऑडिटर सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि वी शुड आस्क फॉर द कॉपी ऑफ दोस रेजोल्यूशन फ्रॉम द कंपनी। तो वी शुड गो थ्रू द रेजोल्यूशन, की रेजोल्यूशन में कुछ ऐसा पर्पस या कुछ मेंशन है या नहीं। सेकंड,
आप लोग कंपनी से एग्रीमेंट मांग सकते हैं, हम लोग की जो लोन एग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ है दैट कॉपी। इसके अलावा जो मुझे लगता है एज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन कि देयर इज नो सच डॉक्यूमेंट, नथिंग इज अवेलेबल विद द ऑडिटर कि जिसके बिहाफ पे ऑडिटर डिसीजन ले सकता है। तो ऑडिटर जब भी कमेंट करे ऑडिटर रिपोर्ट में, he can comment on this point along with the clarification about the document he have received on this point. मगर देवेश जी फिर हमारी जो ड्यूटी है वो तो कंप्लीट नहीं हुई ना। अब जो ड्यूटी है, बट ड्यूटी को लॉ भी लॉ भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। कंपनीज एक्ट में बात करते हैं, कहीं भी ऑडिटर का पावर नहीं है कि वो बी कंपनी की बुक्स को वो फाइंड आउट कर सकता है कि आज आपकी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को लोन दिया, यू कैन नॉट एक्सेस देयर फाइनेंशियल्स। I will just want one question, Rajesh जी और कोले साहब आप में से पूछता हूँ, if I write to the auditor of the third company asking that this investment has been made or not, will it be violative of my ethics? हाँ जी कोले साहब, any comment from you? Sir, I think basically all the information is very confidential. So all the information which is in public domain that can be shared, where you have privy to a personal information between the auditee and the auditor, sharing the third auditor unless you are a joint auditor, then it becomes difficult. So then this provision is useless because there is no way that I can verify this fact from anywhere. प्रैक्टिकली आज के डेट में आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। नहीं sir, नहीं, we can't do as of in the ground stat scenario you can't verify. The Exactly. best persons would be the bankers, because then bankers take a commitment when they're doing the FATCA and other things. They take the ultimate beneficiary declarations from the party. Otherwise, you don't have. ज्यादा से ज्यादा सर मुझे क्या But लगता if they file a form with the bankers, you can take a copy of that bank account. Sir, वो नहीं Because देंगे। each bank is taking a declaration from all the clients. कोहली साहब बैंकर तो कभी नहीं देगा, वो मेरे को मेरी वाइफ की स्टेटमेंट नहीं देता। आप क्या बात कर रहे हो? सर कंपनी ने बैंक को नहीं देगा। फाइल किया, वो डॉक्यूमेंट ले लो आप। Devesh ji, tell me if I ask my company, of which I am the auditor, to get a declaration from the other company's auditor that this investment has been made. देखो Well, सर, do you think that will be हो possible? सकती है कि आपने अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को बोला कि मुझे इस पर डिक्लेरेशन लेके दो। फर्स्ट थिंग हो सकता है कि ठीक है वो मांगेंगे सामने वाले से, बट सामने वाला इज नॉट लायबल टू गिव द डिक्लेरेशन। वो देता है बहुत अच्छा। I'm just completing it. Then can we qualify? Then can we qualify the report I'm just that coming this on the information point, was not made available? I'm just coming on the point, sir. देखो लॉ क्या बोल रहा है, लॉ ने ये बोला है कि आपको डायरेक्टर के स्टेटमेंट जो उन्होंने बैलेंस शीट में अपना नोट्स टू अकाउंट में स्टेटमेंट दिया है, आपको उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है कि वेदर इट इज अ मिस स्टेटमेंट और वेदर इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आपने कंपनी से बोला, आपने चलो रेजोल्यूशन जो थे ले लिए, अब आप कंपनी से आप ज्यादा से ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल होगी कि आप डायरेक्टर से एक डिक्लेरेशन ले लो कि मैनेजमेंट ने जो लोन आगे दिया है वो किस पर्पस से दिया है। बिकॉज आप इसी लेवल तक एक मैनेजमेंट भी जा पाएगी और मुझे लगता है कि इसी लेवल तक आप जा पाओगे। हाँ, या ये कर सकते हो या आप अपनी कंपनीज को, हम लोग अपनी कंपनीज को गाइड करना शुरू करें कि हमारी कंपनीज आगे कोई भी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी देती है, इन फ्यूचर की चलो बात कर लेते हैं, तो वो उनके साथ सामने वाली कंपनी के साथ पहले ये टर्म्स एग्री करके चले कि वो लोग एट द एंड ऑफ द ईयर एक डिक्लेरेशन हमारी कंपनी को देंगे कि उन्होंने इसका क्या यूज किया है लोन का। अगर ऐसा कर पाए तो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन इस पॉइंट पे है क्या। सर आपका माइक म्यूट है। उसी की स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए उससे दूसरी स्टेटमेंट ले रहा हूँ, वो कहाँ का तुक बनता है? एग्जैक्टली, तो इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। आप मेरे ख्याल से आप इसको बोलेंगे क्वालिफाई नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको इसके साथ एक नोट डाल देना चाहिए। We can give an observation. You can Observation. Not been able to verify the ultimate beneficiary interest. Yes. exactly In the absence of records. yes। तो एक तो ये नया डिस्क्लोजर एड ऑन हो गया ऑडिटर रिपोर्ट में। इसके अलावा जो नेक्स्ट नया डिस्क्लोजर एड ऑन हुआ है दैट इज रिलेटिंग टू द डिविडेंड। दिस इज आस्किंग whether the dividend declared and paid during the year by the company is in compliance with the section 123 की कंपनी ने जो भी डिविडेंड पे किया है। तो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पे इन्होंने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर दी है। तो ऑडिटर को सिर्फ यही नहीं देखना कि डिविडेंड की जो कैलकुलेशंस की थी या जो वो किया था वो करेक्ट है या नहीं, उसके साथ ऑडिटर हैव टू चेक कि डिविडेंड के क्या कंप्लायंसेस भी प्रॉपर्ली हुए या नहीं हुए। एग्जांपल,
डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है तो दे हैव टू चेक कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जनरली प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, 2 डायरेक्टर है 2 शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है वही शेयर होल्डर है, उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दे सेड कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया और वी आर द 2 पर्संस, तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं कंपनी के अकाउंट से। बट कंपनीज एक्ट का सेक्शन 123 बोलता है कि आपको कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन के अंदर पैसा ट्रांसफर करना है, देन यू विल डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। अब कंप्लायंस जो लॉ का है वो आपको करना ही पड़ेगा। नाउ इट इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑन द ऑडिटर्स कि अगर आपकी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो यू हैव टू चेक कि 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या अमाउंट ट्रांसफर हुआ और उसके बाद क्या वो आगे ट्रांसफर हुआ। डेबिट हो गया। So the disclosure of the 123 is now applicable on the auditors. तो ऑडिट रिपोर्ट में 3 अमेंडमेंट हुए हैं। स्पेसिफाइड बैंक नोट का डिस्क्लोजर डिलीट हो गया है। लास्ट जो हमने अभी कमेंट वाली बात की थी वो डिस्क्लोजर ऐड ऑन हुआ है और ये डिविडेंड का डिस्क्लोजर ऐड ऑन हुआ है। इसके अलावा एक और पॉइंट है इनका, दैट इज रिलेटिंग टू द ऑडिट ट्रेल। तो ऑडिट ट्रेल वाला पॉइंट अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये 2024 में एप्लीकेबल होगा, तो ये दिस ईयर मेंशन नहीं करना है। So these are the certain, we can say, changes this year in the auditor's report. Now I will take next 10 minutes and I will speedily discuss about the some changes in the financial statement. Why I'm discussing it, so that everyone should keep in mind, because this time everyone is working on the financial statement. तो अगर किसी का कोई पॉइंट छूट रहा है या किसी का कोई पॉइंट रह गया है तो दे शुड कंप्लीट दैट। देवेश जी, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, मेरे कुछ गेस्ट आए हैं तो आई विल बी साइनिंग ऑफ। थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू राजेश जी। तो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, जो अमेंडमेंट का राउंडिंग ऑफ। दिस ईयर राउंडिंग ऑफ इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज। राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी हो गया है। तो अब हमारे पास आज तक तो चॉइस होती थी कि राउंड ऑफ करना है या नहीं करना, बट दिस ईयर दिस इज नॉट अ चॉइस, दिस इज अ कंपल्शन दैट वी हैव टू राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ में भी इन्होंने 2 अलग-अलग प्रोविजंस मेंशन किए हैं। नंबर 1 कि दिस प्रोविजन सेड कि अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ तक है, कि अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ तक है तो आप राउंड ऑफ 100 में भी कर सकते हो, 1000 में भी कर सकते हो, लैक्स में भी कर सकते हो, मिलियंस, कितना भी आगे जा सकते हो। बट अगर आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो आपके पास मिनिमम टू मिनिमम राउंड ऑफ करने का जो स्कोप है वो है लैक्स में। मतलब अगर आपकी फॉर एग्जांपल इनकम 101 करोड़ है टोटल इनकम, तो आप 1000 या 100 में राउंड ऑफ नहीं कर सकते, मिनिमम टू मिनिमम लाख में राउंड ऑफ करना है। तो दिस राउंड ऑफ प्रोविजन इज दिस ईयर वी कैन से इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दिस ईयर ऑफ द राउंड ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है, राउंडिंग ऑफ के प्रोविजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है राउंडिंग ऑफ के प्रोविजन पे कि इस साल एओसी 4 में फिगर्स कैसे मेंशन करनी है। ये एक बहुत सारे लोगों का बहुत वी कैन से वैलिड क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोगों से मुझे रिसीव भी हुआ है कि इस साल हमें एओसी 4 में कैसे फिगर मेंशन करनी है। तो आई जस्ट वांट टू टेक द व्यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एओसी 4 में अगर हमें फिगर मेंशन करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या वे आउट है। क्या हम राउंड ऑफ फिगर मेंशन कर सकते हैं, क्या हमें एक्चुअल फिगर ही मेंशन करना है, मतलब एओसी 4 में हमें फिगर मेंशन करनी कैसे है। नाउ द व्यूज, एनीवन, एनी व्यू, वी आर ओपन टू डिस्कस, बिकॉज हमारा पर्पस ही वेबिनार का ये है कि हम प्रॉपर्ली सब कुछ डिस्कस कर पाए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे लोगों से मेरे पास ये क्वेश्चन आया है और बहुत सारी जगह डिस्कशन भी हुआ है कि अब राउंडिंग ऑफ मैंडेटरी हो गया है तो एओसी 4 में हम क्या करें। क्या एओसी 4 को हम राउंड ऑफ फिगर से ही मेंशन कर दें या एओसी 4 को हम प्रॉपर एक्चुअल फिगर के साथ मेंशन करें। अब इसमें एक इशू क्या आता है, हमारे पास बैलेंस शीट जो आ रही है वो राउंड ऑफ फिगर की ऑडिटेड बैलेंस शीट आएगी, ऑडिटर ने जो साइन की है, डायरेक्टर्स ने जो साइन की है वो राउंड ऑफ बैलेंस शीट साइन की है। तो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एनीवन वांट टू गिव देयर व्यू थ्रू चैट बॉक्स, एनीथिंग, प्लीज मेंशन योर व्यू। एक किसी ने लिखा है राउंड ऑफ मैंडेटरी, राउंड ऑफ मैंडेटरी तो हम डिस्कस कर चुके हैं। Sir, actually the forms had to be revised. They should give the option whether you want to do in thousands or in lakhs or millions. So form नहीं बनाई इन्होंने।
So sir, according to you, कि round off में mention करना चाहिए AOC form में? Sir, you can't because basically the form is not accepting the round of figures, ना? बस उसमें एक चीज है ना सर, जैसे जनरली क्या होता है कि फॉर्म में कहीं ऐसा कॉलम नहीं है कि जो हमें सिलेक्ट करने दे कि आप 1000 में किया है कि 100 में किया है कि lakhs में किया है. That box has to be provided, ना? हाँ, तो that column is not provided. जो हमारे पास XBRL में वो ऑप्शन है, but normal AOC for filing में हमारे पास वो Sir, ऑप्शन नहीं. because basically the entire data they want to compile and make the averages. So how will you, if you don't know the figure in 1000 or lakhs, how can they compile all the data? Exactly. तो मिनिस्ट्री ने भी ये इशू था 20 सितंबर को, मिनिस्ट्री ने भी अपने साइट पे क्लैरिफिकेशन इशू किया कि ऑल्दो बैलेंस शीट्स आपकी राउंडिंग ऑफ में बनेगी, बट AOC 4 में जो भी आपको फिगर्स मेंशन करने हैं, AOC 4 में आपको एक्चुअल फिगर मेंशन करने पड़ेंगे. तो जो भी AOC 4 बनाएगा, उसका अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी बना रहा है तो ऑडिटर से उसको एक्चुअल फिगर्स लेने पड़ेंगे, या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म फिल कर रहा है तो दे हैव टू मेंशन द एक्चुअल फिगर इन द AOC 4. AOC 4 में आप राउंड ऑफ फिगर्स को मेंशन नहीं कर सकते. AOC 4 में तो एक्चुअल फिगर्स को ही मेंशन करना है, और इस चीज को मिनिस्ट्री सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई भी, मिनिस्ट्री की साइट पे मेंशन है, क्लैरिफाई भी कर चुकी है. So this is the point. अब मैं जो कुछ क्वेश्चन आंसर है सर राजेश जी पहले वो ले लेते हैं, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स है लोगों के, आई थिंक दे वांट टू डिस्कस. तो मैं पहले पॉइंट्स ले लेता हूं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स में मेरे यही पॉइंट्स थे जो मैंने अभी डिस्कस किए आप लोगों के सभी के साथ. जी सर, जी सर. तो मैं एक बार क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं. मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले एक क्वेश्चन था, विद एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग लोन बाय डायरेक्टर एंड सोर्स देयरऑफ एज स्टैट्यूटरी विल कंफर्म कम डिक्लेरेशन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं अतुल जी का पॉइंट की डिक्लेरेशन इज इनफ. नेक्स्ट इज, do we need to prepare two sets of balance sheet with the same UDIN, one income tax with full amount rupees, another with ROC round of figures, should both have UDIN or different UDIN? See, जो मेरा व्यू है, जैसे मिनिस्ट्री ने भी अभी बोला कि मिनिस्ट्री ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उसमें स्पेसिफिकली लिखा कि आप अटैच करोगे राउंड ऑफ वाली साइन बैलेंस शीट, फिगर मेंशन करोगे एक्चुअल फिगर्स, बट दे सिंपली मेंशन कि जो एक्चुअल फिगर्स आप जो मेंशन कर रहे हो वो बैलेंस शीट सर्टिफाइड होना मैंडेटरी नहीं है. So from the point of view of the ROC return, from the point of view of the AOC 4, if I will say कि जो आपकी एक्चुअल फिगर वाली बैलेंस शीट है वो आपको ऑडिटर साइन या यूडिन मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है. आपको जो एज पर लॉ बैलेंस शीट जो एक बनानी है वो आप राउंडिंग ऑफ की बैलेंस शीट ही बनाओगे. इवन टैक्स ऑडिट में भी दिस वी हैव सीन कि पीपल हैव अटैच्ड ओनली द राउंड ऑफ बैलेंस शीट, बिकॉज़ वही तो प्रिपेयर हुई है जो ऑडिटेड हुई है जिस पे यूडिन मेंशन हुआ है. We can check the financial. Someone asked कि we can check the financial of other company by paying the minimum charges. Right? जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि हम किसी दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे एक्सेस करेंगे, तो हम जो एक्सेस कर सकते हैं उनका उनकी फाइलिंग के बाद कर सकते हैं, बट जो फाइनेंशियल्स या ऑडिटर रिपोर्ट बनेगी वो तो 30 सितंबर से पहले ही रेडी करनी है, तो उस दिन हमारे पास उनके फाइनेंशियल्स प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होते हैं. Someone mentioned please share the format of the director report. जो मैंने डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट अभी आप सभी के साथ डिस्कस किया था, आई विल शेयर इट विद द राजेश जी. तो राजेश जी कैन शेयर टू ऑल द मेंबर्स. नेक्स्ट आता है, ये हो गया है टू सेट्स वाला. टू बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन वन इन लैक्स, अदर इन फिगर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. देन समवन मेंशन कि द राउंड ऑफ इज मैंडेटरी. यस, राउंड ऑफ इज मैंडेटरी दिस ईयर. Okay, someone one more question is there. You can round off only as you can go back and reach full figure. It would be revisiting of the data. हाँ, राउंड ऑफ फिगर तो हमने एक्चुअल फिगर पहले बनाने के बाद ही तो राउंड ऑफ किए हैं फॉर्मूलाज लगा के. इन केस बैलेंस शीट प्रिपेयर बाय ओनली राउंडिंग ऑफ, नॉट इन हंड्रेड्स, थाउजेंड, इज इट ओके? सॉरी, ओनली बाय राउंडिंग ऑफ, नॉट इन हंड्रेड. सॉरी शिवा जी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, बिकॉज जो आपने लिखा है कि राउंड ऑफ किया है बट 100 में नहीं किया, 1000 में नहीं किया. राउंड ऑफ करोगे तो एटलीस्ट नियरेस्ट 100 या 1000 किसी फिगर में तो हमें करना ही पड़ेगा. तो राउंड ऑफ तो बिना 1000 या अंदर में राउंड ऑफ किए पॉसिबल ही नहीं है. Sir, let me check. Sir, the balance sheet has to be in the agreement with books of accounts. So for the purpose of preparing the balance sheets and the detailed figures, the rounding is only for reporting purpose in the accounts. Exactly, sir. Please provide 16 point to be mentioned. The notes where something is not applicable can be omitted or is it compulsory to give all the point? हाँ, अब ये है कि जैसे बैलेंस शीट में जो अमेंडमेंट आए हैं, बैलेंस शीट में और P&L के नोट्स टू अकाउंट में 16 पॉइंट्स ऐड ऑन हुए हैं. सो एवरीवन हैविंग दिस क्वेश्चन कि वो सभी मेंशन करना मैंडेटरी है या जो एप्लीकेबल है वही मेंशन करें.
तो सी देखो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि सभी ही मेंशन करो या सभी जो एप्लीकेबल है वही मेंशन करो, बट एज अ प्रैक्टिस यू हैव टू अडॉप्ट समथिंग, कि आपको एक प्रैक्टिस फॉलो करनी कि नहीं मैं तो सारे मेंशन करूंगा या मैं कुछ मेंशन करूंगा। बट माय एडवाइस, इफ आई विल से माय व्यू, तो मेरे अकॉर्डिंग सारे मेंशन कर लेने चाहिए। इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर कभी कोई प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है तो वो मिस नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज फ्यूचर में जो भी प्रोविजन अगर एप्लीकेबल हुआ तो वो आपसे मिस नहीं होगा, वो आप प्रॉपर्ली करेगा। Next point question, in case of LLP, are we supposed to raise two UDIN? One for audit under LLP Act अंदर नहीं, UDIN तो आपका एक ही जनरेट होगा, चाहे आप टैक्स ऑडिट के लिए बिकॉज बैलेंस शीट तो आपकी एटलीस्ट एक ही बनेगी, चाहे LLP हो या कंपनीज एक्ट हो, बैलेंस शीट तो एक ही बनानी है और उनपे हमें UDIN मेंशन करने हैं। So these are the certain point which I would have to discuss with all of you today, because बहुत सारे ये छोटे-छोटे पॉइंट्स है, और ये छोटे-छोटे पॉइंट्स में ना क्लैरिटीज बहुत ज्यादा चाहिए थी, जो विच आई ट्राइड टुडे कि हम लोग वो डिस्कस कर पाए। सो अब किसी का कोई क्वेरी है तो आई कैन पिक अप दैट। वन इज देयर, राउंड ऑफ एग्जांपल, इफ फिगर इज 3,15,284, कैन वी राइट इट 3,152.84? अगर आप 100 में विद डेसिमल्स राउंड ऑफ करते हो तो आप 3,152.84 डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, और अगर आप डेसिमल्स में नहीं जाते तो आप इसको 3,153 भी मेंशन कर सकते हो। इट इज टोटली योर चॉइस, बिकॉज अगर आप लिस्टेड कंपनीज को भी बेस लेके देखते हो तो अगर आप 10 कंपनीज लिस्टेड कंपनीज की बैलेंस शीट निकालोगे तो सबने अलग अलग बेस लिया है, बट राउंड ऑफ तो सभी ने किया है। कोई डेसिमल में करेगा, कोई विदाउट डेसिमल करेगा, दैट इज टोटली योर चॉइस कि आप डेसिमल्स में जाते हो या नॉन डेसिमल्स में अपनी बैलेंस शीट्स को राउंड ऑफ करते हो। सो आई थिंक ऑल द क्वेरीज अजीत जी हैज बीन क्लियर्ड ऑफ द मेंबर्स। किसी की और भी कोई क्वेरी हो तो आई एम रेडी। कोई क्वेरी नहीं है सर, आपने इतना डिटेल में पढ़ा दिया कि क्वेरी रही नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Anyway, sir, thank you very much for your nice deliberation. I request our convener Rajiv Kohli ji for a formal vote of thanks. राजीव कोहली साहब, अब पहले अनम्यूट करके वोट ऑफ थैंक्स दे दो सर। अनम्यूट करो सर, पहले अनम्यूट करो सर, म्यूटेड हो सर, अभी म्यूटेड हो। नहीं, Can you hear me, please? Hello, हाँ सर, बोलो सर, बोलो। sir. Thank you for an excellent deliberation. Sorry, मैं जरा en route हो गया अभी इसलिए, but excellent बहुत clarification जो है ना, specified my KYC for web based, and we have to be very careful whether as a we are registered as a registered user or a professional user. Because you're not registered as a professional user, तो आप जो फॉर्म करोगे शायद वो लिया नहीं जाएगा, उसके अंदर भी मैं have a problem later in the day. Because I was observing on the site the way they are not distinguishing all those things, so ये बड़ा subtle changes आ रहे हैं because of technology being taken major part of that. Right. And things are changing. The forms have to change for their hundreds, thousands. That will come in a later stage. Let's see what's up. Sir, thank you very much for very extended everything. You just answered all the queries, which are very crystal clear with your domain knowledge, expertise.